So I welcome you all to the alumni webinar today. It's an honor to be present here and to be a part of the alumni team. It's a privilege where I can share, the entire podium with all the dignitaries. Our VC sir, advisor sir, HOD Electronics is here, and of course our esteemed alumni all present here today. To talk about alumni, it's alumni is not only the meet is not only about reconnecting to our institution, but it holds a lot of value where we reconnect to our younger self, to our younger dreams, which we dreamed at 18 years of age when we enter our university. It is about reconnecting to our aspirations at that time. It is also about going down the memory lane where we were young, full of fear, full of big aspirations, full of bigger dreams, and also going back and being our younger self and reliving those moments in the institution, moments with our teachers, moments with our friends, our seniors, our juniors. So alumni is a transformation, it is a reconnect, it is a time of rejoice, and it's like a festival where we meet the younger version of ourselves. So with that note, and with that saying that this entire reconnect is not only about compliance, but it is also about our own transformation, our own journey from where we started when we entered our college and university to almost where we are now, doing well in our careers, reached our goals, full of self-actualizations, full of motivation, and ready to motivate our own juniors in our institution. With that note, I take an honor to invite Dr. Saurabh Bansal, who's the head of the JUIT alumni cell. He shall take forward from here and say a few words and share his thoughts with all of you present today. Dr. Saurabh. Very good morning to all. I would like to extend a warm welcome to our Honorable Vice Chancellor, Professor Rajendra Kumar Sharma, our esteemed advisor, Professor Vinod Kumar, our respected Dean of Academic and Research, Professor Ashok Kumar Gupta, and all of the department at this event, and alumni talk by Mr. Sandeep Razoria. I also welcome Mr. Sandeep, our distinguished alumni, other alumni who are present here, and as well as all of my colleagues, students, alumni, and participants from other institutions as well. So, Alumni Cell is an entity that represents JUIT in alumni relations and endeavors to be a primary linkage between the university and its global family of alumni, committing them to the university's lifelong learning, discovery and participation, and attracting them to university service. We aspire to provide and support alumni programs and services, facilitate communications with alumni, and seek to strengthen alumni bonds of fellowship, professional association, and university affiliations. So I proudly say more than 7,000 students from diverse departments of this university have graduated and are doing very well in their current position. So Mr. Sandeep Razoria is our distinguished alumni of batch 2015. Today he is with us to share his journey from preparation to performance in his career that characterized by hard work, dedication, and perseverance. He cleared the UPSC exam in 2020 with flying colors, securing an All India rank of 290. Here I want to take this opportunity to congratulate him for this great success in the UPSC exam on behalf of the whole JUIT family. So, Sandeep, congratulations for your this achievement. He has proved to be an excellent role model for prospective university students and a tremendous source of motivation for our young people interested in civil services. We are very well aware here in JUIT
It has a rich and cultural past. It has nurtured the lives of many students. In addition, numerous students have earned a name for themselves on behalf of our university, setting an example for future generations. In recent years, our students have dispersed across the country and even internationally in quest of growth, learning, and knowledge. And their achievements have made an impact everywhere. So we are ecstatic that our students have established themselves as a successful persons in nearly every aspect of their lives. I appreciate this idea of alumni talk, which creates a special bonding between the students and the alumni who have established themselves already in the big outside world. And alumni talk is an excellent opportunity for our students to meet their alumni and learn from their experiences. Sandeep, we hope you stay in touch with the university and encourage the students to succeed and their future efforts. I would also like to say that the fame of an institution is built not only on its administration and teaching staff, but also on the accomplishment and development of its students. Nothing could be more exhilarating for us than celebrating the achievements of our I hope you will not only enjoy this talk today, but also learn a lot from the experience of Mr. Sandeep's journey. Finally, I would like to congratulate again Mr. Sandeep for his achievement and wish him the best of luck for his future endeavors. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, Dr. Sandeep. Dr. Saurabh, that was quite a speech and quite a welcome note. Now I would like to invite our Honorable Vice Chancellor, Professor Sharma, to share a few words with us. Thank you. Thank you so very much, madam. Thank Am I you. audible, please? Yes. Yes, sir. Okay. So I will also start with a with a note of congratulations to Sandeep. Thank you, Many sir. congratulations to you, Sandeep. Thank you, sir. I know the institutions are known by the organic matter that they have, be it the faculty members, be it the students, be it the supporting staff, be it the persons who are doing the security for us, be it anybody. So institutions are actually known by the organic matter that they have. And again, it's important that we prove our organic matter here. For example, if I remember here, I need to show something that I'm doing good publications, I'm doing good teaching, I'm doing good administration. Similarly, when we talk of the students make the institute proud by taking good placements, starting their journey from a very different level as you have done. It's really a matter of pride for all of us that you have secured a good rank here in civil services examination. And let me just add here that the success comes with the hard work. I'm sure that you might have devoted a good amount of your time in learning number of things. I remember my days that I also took CS civil services 2 times. So I qualified mains once, and next time I could not qualify even the mains. And now at this age, I remember that, and I can analyze that why I could not do that. Let me admit here that I did not pay that attention to the things. I did not do that hard work, which is required to achieve the better goals in life. And let me just add
I mean, in my batch, my previous batch, my uh, next batch, four of my friends are working as IAS this day. And now I analyze, I mean, what was that which has put me behind? That is only the hard work, only paying attention to the things that are there in front of you. So I request my students many times that you have to focus. Focus on your work. When you are in the classroom, focus what is being taught. When you are in a you are on a playground, focus on the sports. When you are going to see a movie, focus on the movie. But that does not actually happen. When you are in the movie, you keep on thinking, Amit Srivastava sir told me this thing on that day in the class. And when you are in the class, then we used to think about Madhuri Dixit. How did she look in that movie? So we don't actually many times focus. And I'm sure those who put a more focused approach, they get success, as Sandeep has done. I'm sure he will share his journey with. And Sandeep, you share, I mean, what kind of the hard work is required here in achieving these kind of successes? I'm sure, I mean, this will be really a motivating experience for all the students. And I'm really happy to note that in all we are having around 162 persons who are attending this particular talk. And especially the students, they will certainly benefit out of it. So you just please focus on this, that there is no substitute of hard work. One has to work hard. I mean, one way, at one time or the other in the life. One has to. Otherwise, I mean, you will live a very, very normal life. So with these words, I again congratulate you, Sandeep, for this achievement. And I also take this opportunity of saying a thank you to my placement team, training and placement team, for organizing this event. And I'm sure that they will also be doing this in future. So I will request one more thing, Sandeep, which I mean, generally students do not do. Say, after say 7, 8 years, 10 years, you don't look towards your alma mater. I've seen it in my students. I mean, I have taught now up to around 30 years, 24 years in Tagore Institute. But once you achieve at some level, then after 10, 15 years, you just forget about your university. So you do come back someday. Do come back someday in any form you can feel. So I'm not saying that you join as a professor here, but there are very, I mean, many different ways during which you can actually connect. Please do connect after 5, 10 years, 15 years. Probably then you will be able to contribute even at a higher scale to this university. Okay, with these words, thank you for inviting me and sharing these words. Congratulations to you once again, Sandeep. Thank you, sir. See you someday. Bye-bye. Nice. Thank you so much, sir. So I think it is good to remember and good to know that focus and hard work and determination is the key to success. Words of our Vice Chancellor, Professor Sharma here. Thank you so much, sir. Now I would like to take the opportunity to invite our advisor, sir, Professor Vinod Gupta, to say a few words with us. He was also our Vice Chancellor. He has served the university from quite some time now, and now he's taken the position of an advisor. Oh, thank you, thank you. I have already congratulated him, so probably now we can request him to take over the mic. I have already spoken to him, and I am really very happy that he has attained such a prestigious position, as well as the clear that exam. It's really an honor for the university also. And
I, on my behalf and on behalf of all of you, see, I congratulate him and I wish him a much more achievements in life. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Sir, Professor Rajiv Kumar, the HOD of electronics, and Sandeep has studied electronics from he's a ECE branch student. So I think Rajiv sir would like to say a few words to Sandeep, and I can see all smile on Sandeep's face. Yes. Okay, Yeah. thank you, Dr. Tanu. लग रहा है बहुत डांटा है संदीप को राजीव जी ने. Is it so? Good morning, everyone. It is a matter of great pride for me to have Mr. Sandeep Rajoria with us today. Sandeep, I congratulate you on behalf of the whole ECE department. We are proud of you for your success and your entire UPSC journey. I am sure all the students here are inspired to work towards their dreams. Our blessings will always be with you in your future endeavors. All the best wishes. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, Rajiv sir. And I think Sandeep wanted a little note from Bajaj sir as well. Oh, yeah. I think all the old teachers here sitting way back from 2000, I think 5, 4, Bajaj sir has been with us. Bajaj sir, a few words from you. Thank you very much, Tanu ma'am. Thank you very much. Very good morning to VC sir, advisor sir, my dear colleagues. I am very much thankful to everyone for getting this opportunity to speak something about Sandeep, who has been my student from a long time, and he has also visited few times back. So I think during this time, when we feel that, actually I do understand that the world where we are living in is completely unique, and unique in the sense that technology is wireless here, cooking is fireless, sweets are sugarless, food is fatless, relationships, they are friendless, and youth are aimless. But here I see a student-teacher relationship, in fact, a very nice example of youth who was never aimless in his goal, in his achievements. कहते हैं कि मंजिल मिलेगी परिंदों को यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, रहते हैं खामोश जो अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं. So it is in fact it is very really difficult to even estimate or imagine the hard work through which a student preparing for IAS undergoes. वो समर्पण, वो त्याग, वो धैर्य, वो जज्बा, वो गंभीरता, और वो कुछ ऐसा कर जाने का जुनून अपने मानस पटल पर जो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श स्थापित करती है, वही एक युवा पहचान बनाती है. तो आई थिंक संदीप हैज डन a lot of work for achieving this goal, and we pray for his new successful life where he can put in his best effort for serving this country, हमारे देश की सेवा करे और अपना नाम ऊंचा करे, so that हमारी यूनिवर्सिटी का भी नाम वैसे ही बहुत ऊंचा उठे. And I pray to Lord Krishna that he should get, or Lord Krishna provide him the strength to change the things which he can change. And I pray to Lord Krishna that he gives serenity and tolerance to face those things that he cannot change. And also, in fact, he needs that much of wisdom to identify what he can change and what he cannot change. So these three things I pray for him
और मैं पूरी दिल से मैं संदीप को बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए। और 25 सितंबर की वो रात 12:12 पे जब संदीप ने मैसेज किया मुझे 25 सितंबर को, आई वॉज इन माई होम टाउन एंड दैट टाइम आई आस्क्ड तुम कहाँ पर हो? ही टोल्ड दैट आई एम इन विशाखापट्टनम। सर, आई हैव अ ग्रेट न्यूज, आई हैव अ गुड न्यूज टू शेयर विथ यू। And I was very much happy on that day. I remember that moment, in fact, where I was sitting there and what was my, my feelings for a student, because एक student के अलावा एक teacher के पास कोई और धरोहर नहीं होती. So it is definitely, I really congratulate Sandeep. God bless you, बेटा. और Thank मुझे you. तुम्हारे वो दिन हॉस्टल के याद आते हैं, क्लासेस के दिन याद आते हैं। तुम्हारे में एक गंभीरता कहीं ना कहीं थी, दोस्तों के साथ मजे भी करते थे और कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में मैं देखता था एक गंभीरता सी रहती थी। और ही वॉज वेरी मच सिंसियर इन हिज डे टू डे टॉक्स। और 3-4 साल पहले संदीप हैज विजिटेड अस विद अभिनव, आई थिंक, and they given a talk in TIDC cell, I think. We have organized, I and Ms. Srivastav sir, we have organized a talk of these two students because they were about to achieve something at that time. So they had a good experience to share with their juniors. So that talk was taken place at that time. So thank you, Sandeep. I wish you come here and we will see this face to face. We want to see you, hug you. Sure, Okay, sir. congratulations, Sandeep. Thank you so much, sir. Thank you so much, Bajaj sir. That was so much of insight and such beautiful words from you. And of course, we would always want Lord Krishna to shower all his blessings on Sandeep and I think all of us here present and on all our alumni as well. And on especially on the institution, I think JUIT has done so much for us, given us such a beautiful platform to grow, to aspire, to dream big. With that, taking this journey a little forward with connections, with relationships, with compliance, with a thought of growth and prosperity, I would like to invite Sandeep to share a few words with us today. Enough has been said about you, Sandeep, so I wouldn't take much time. Just a little reference that he was from the 2015 batch of Electronics and Communication Engineering. He has scored All India rank of 290 in UPSC in 2020. And he was just recently facilitated by the Chief Minister and the Education Minister of Madhya Pradesh for all his achievements. So with that, Sandeep, over to you. Thank you, ma'am. Thank you so much for inviting me. First of all, I want to thank Honorable Vice Chancellor sir, Advisor sir, Bajaj sir, Amit Srivastav sir, and all respected teachers, including the HOD of ACE department. Sir, since the day one I was in college, my life has changed totally because of the college. College role is a big in my life, and that is the reason why I didn't even think twice before coming to alumni meet. That is a small thing for me. I will come to the college also, but that nostalgia that comes, that ups and downs that I have seen in the college, the friends, the roommate, and teachers, they were there for me at that time. That is deep inside my heart. So if I think from the mind, it's not a big thing, but heart, you can't change heart. As sir, Vice Chancellor sir told me that you should be connected. Well, I will always be connected. My heart is going to be the same. It is not going to change. My mind can. But how can I forget those memories that I made, those trekking, the sunset, sunrise, so many sunrises for 4 years, and that hostel, that open cafeteria, OC, the night outs, and also I used to remember that I used to laugh aloud in college, and my batchmates used to say, "What? Why are you doing this? Like it's pretty not in terms of the code of conduct or manners." But what to do? I was so happy in the college. I was alive in a way. Well,
The college, before we talk, let me introduce myself fully. I am Sandeep Rajoria. I belong to Morena, Madhya Pradesh. So I belong to the Chambal area, Chambal region. It is known for crimes, dacoity, and so my background has been a little bit in this background. I have seen such things. So there was a little thing in me that what to do to change it. Well, but the aim as it, I was not very clear about it. But my journey, the real journey, started from 2011, which I started the college. So college has been the turning point. Well, the thing that you all can relate is वो ढाबे के पराठे, ओपन कैफेटेरियाज, ध्यान कक्ष के सामने बैठना, और वो वाकना घाट से कॉलेज की तरफ जाती हुई रोड जिसमें हम कोई बस कोई गाड़ी नहीं पकड़ते थे, सिर्फ पैदल चलते थे, और जो माउंटेन्स हैं आसपास, और वहां पर मंदिर, राइट। हम होली भी हम इतना पसंद करते थे कॉलेज को। आई स्टिल रिमेम्बर, अमित सर और बजाज सर जानते होंगे कि हम दिवाली में भी उनके घर आ जाते थे। मतलब हम दिवाली होली भी जाते नहीं थे घर अपने, हम यहीं रहते थे, हमें बड़ा अच्छा लगता था यहाँ पर। और आई स्टिल रिमेम्बर दोज यूनिक नोट विच इज देयर। हम आज भी उस चीज पे बड़ा हंसते हैं कि टुडे cricket match is going to be held at basketball court. So like we used to say what is happening, and then volleyball match is also happening, and football match is scheduled at 9. We used to like basketball court is the thing on which everything is happening. There was a lot of moments, each and every corner of the college we have memories, because we don't have anything to go, like outside world is not there, everything is there in the college. So each and every second and day that we were there, those sceneries, the clouds, and the moments, memories, each and every corner I see, sometimes the photos come, all the memories get flooded. So ये भूल नहीं सकते। और मैं अभी अपनी स्पीच से पहले ही बोलता हूँ कि I will always be connected, always be, and I will come, and जहाँ पर भी मेरी पोस्टिंग होती है, कभी इनफॉर्मल फॉर्मल टॉक्स, आई विल ऑलवेज बी एंगेज्ड विद टीचर, बिकॉज मैं आपको बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ, जितने भी टीचर्स थे उनके कुछ अंश मेरे अंदर है, क्योंकि जो उन्होंने नॉलेज मुझे दी है, तो अगर मैं आगे कुछ करता हूँ अपने कंट्री के लिए, जो मैं बहुत दिनों से चाहता था करना, अगर मैं कुछ करता हूँ, कुछ चेंजेस लाता हूँ, कुछ रेवोल्यूशनरी चेंज आता है आगे, तो सारे टीचर्स एंड वो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ थे, a part of you is there in me. So it is done through me, but it is actually done by you. So therefore I want to thank everyone. Well, ये बहुत स्पेशल भी है क्योंकि मेरे बैचमेट्स भी इसमें इनवाइटेड हैं और आए हुए हैं, मैं देख सकता हूँ उनको, और मेरा रूममेट है, तो हम सब जानते हैं रूममेट के साथ हमारी कैसी बॉन्डिंग होती है, बहुत अच्छी। So इससे मैं स्टार्ट करता हूँ। सी, सबसे पहले I will tell you about my journey, and after that I will tell you certain things that person of your age should know. Okay, don't miss it. Certain suggestions from your senior. So it comes from the heart. देखो, you will be able to connect to me. Why you can connect to me? Because मैंने same journey ली है, मैंने उसी open cafeteria में खाया है, और मैं उसी auditorium में बैठ के movie देखा करता था, same, सब कुछ same. Okay, same teachers. So अगर मैं कर सकता हूँ, 110% आप भी कर सकते हो। और how my journey is, आप इसको देखना है, try to relate it with yourself. Okay, कुछ दिनों में कॉलेज स्टार्ट होगा, please try to implement those things. Okay, ये मेरा वो है। Okay, so मैं पहले बताता हूँ, देखो JP यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही यूनिक कॉलेज है। Okay, हमने पहले गुरुकुल की प्रथाएं सुनी हुई है, तो वहां पर क्या है, सबसे पहले जो पढ़ाई होती है वो अलूफ होती है, आउटसाइड वर्ल्ड से थोड़ा सा हटना पड़ता है कुछ दिनों के लिए। JUIT ऑफर्स यू दैट। सेकंड, मेंटल पीस के लिए साइंटिफिक रिपोर्ट्स भी ये कहती हैं कि माउंटेन जो सिस्टम होता है, जो इकोसिस्टम होता है, सबसे ज्यादा पीसफुल होता है, तभी सब मेडिटेशन करने माउंटेन्स में ही आते हैं, आपने देखा होगा। क्लाइमेट भी बहुत अच्छा रहता है, पढ़ने के लिए एटमोसफियर बहुत अच्छा है। सेम JUIT ऑफर्स यू। ओके, वेल, जहां तक प्लेसमेंट्स और मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स का सवाल है, इट इज डूइंग वेरी वेल। आज मेरे सारे बैचमेट्स बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं।
24 सितंबर के पहले तो मुझे लग रहा था सबसे खराब मैं ही परफॉर्म कर रहा हूँ मेरे को जॉब भी नहीं लगी थी, बट एवरीवन इज डूइंग वेरी वेरी गुड। मैं आपको बता दूं, इट्स मींस काइंड ऑफ योर एयरप्लेन हैज फाइंड अ गुड रनवे। ओके, यहाँ से फ्लाई होंगे डायरेक्ट, अब आपको कहाँ जाना है वो आप चूज कर सकते हो। ओके, सो देयरफॉर मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप अपनी जो लाइफ है उसमें एक्टिव रहो। JOIT जो है बहुत ब्लेस्ड पीपल को मिलता है, ये ध्यान में रखना। आई डोंट नो कितने लोगों को ये पता है, कितने अवेयर हैं, बट यहाँ आप कितना कुछ कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ, कितनी पोटेंशियल्स है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो मैंने देखा कि क्लाउड्स और वो जो एक वो होता है वो बहुत अच्छा था, टीचर्स बड़े कोऑपरेटिव थे, और फर्स्ट ईयर तो मेरा ऐसे ही निकला जैसे सबका निकलता है, आजाद भवन में एंड ऑल, ज्यादा ध्यान नहीं देना किसी चीज में। एंड कुलश्रेष्ठ सर होते थे हमारे, उनकी क्लासेस में हम जाते थे, उनने हमें पंक्चुअलिटी सिखाई थी कि आपको 9 बजे ही आना है, उसके बाद नहीं आना है, और हम सब लेट पहुंचते थे और बाहर निकाल दिए जाते थे। काफी एक जो चीजें थी एक एक क्लास में हमने करके सीखी, जो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज एक एक लेक्चर से हमने सीखी। ओके, बजाज सर हमारा लेक्चर लेते थे फर्स्ट ईयर में, मुझे आज भी याद है। मैंने बजाज सर से एक बहुत बड़ी चीज सीखी है जो मैं बताना चाहूंगा, इट्स अ क्लैरिटी ऑफ थॉट। यू नो, ही इज वेरी क्लियर। अब वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ाते थे हमें, हम आज भी बात करते हैं, कभी डिस्कस होता है जो बैचमेट्स है। सर वाज ऑलवेज फर्स्ट अलाइव एंड सेकंड क्लियर। These are the things that you have to read and well explained and everything. I learned this thing. Whatever you have to have a mental picture which is very clear. This is this. Don't go for additional things or complexity arise करने की जरूरत नहीं है, show off करने की जरूरत नहीं है, जो point to point एक clear चीज है। ऐसे करके मैंने टीचर्स से बहुत अच्छी अच्छी चीजें ली। और अमित श्रीवास्तव सर के साथ एक बहुत अच्छा इंसिडेंट था, उन्होंने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई थी, वो आज भी याद है। तो हम सारे फ्रेंड्स मिलके बड़े प्रोजेक्ट्स किया करते थे कॉलेज में। तो हमने एक प्रोजेक्ट किया बार्बर के लिए, हमने एक हीटर बनाया था, अगर सर रिमेम्बर करेंगे, हमने एक ब्लेड के थ्रू एक हीटर बनाया और फिर हम उन्हें देने जा रहे थे। आजाद भवन के सामने सर मुझे मिले, तो हमने सर को बताया, बड़े एक्साइटेड हो गए कि सर देखिए हमने ऐसा ऐसा बनाया है, और इन वे हम लोग काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे हमने कि हमने इतनी बड़ी चीज कर दी है एंड ऑल। और हम गए और सर ने फिर हमें बोला कि तुम्हें पता है अगर ये जो तुमने इनोवेशन किया है, अगर बार्बर को उससे क्या है, वो थोड़ा सा लूज कनेक्शन थे, वो मतलब करंट लग सकता था, इलेक्ट्रोक्यूट हो सकते थे वो बार्बर। सो ही एक्सप्लेन्ड अस कि सिर्फ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेफ्टी प्रिकॉशंस, अदर डायमेंशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो मल्टी डायमेंशनैलिटी जो एक एस्पेक्ट होती है वो हम इंजीनियर्स में होनी चाहिए। तो हमें सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, व्हाट अबाउट द सोशल एस्पेक्ट्स, व्हाट अबाउट क्या पीपल यूज कर पाएंगे उसको, व्हाट अबाउट दैट। अब हम रिसर्च रिपोर्ट्स तो बनाते हैं, सब बना रहे होंगे, तो किसी ने सोचा है कि कितना क्या पीपल परसीव कर पाएंगे उनको। दिस इज द थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम कॉलेज। कहीं नहीं मिलेगा, ये कॉलेज के बाद नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब आप बहुत स्पेसिफिक हो जाओगे जॉब्स में, यही टाइम है, और इतना अच्छा कॉलेज है। सो दिस मीन्स आपके पास बहुत ही फुल टॉस बॉल आई है और आप बैट्समैन हो, जस्ट पुट इट आउटसाइड द बाउंड्री, दैट इज व्हाट यू ऑल कैन डू। ठीक है, तो मैं बता दूं सेकेंड ईयर में जब हम आगे बढ़े तो इलेक्ट्रॉनिक काफी मेरा पसंदीदा था। हम डोर सेंसर बनाते थे और हम टीचर्स को दिखाते थे और बहुत अच्छा लगता था हमें। बट कॉलेज के दिनों में मैं रोटरैट क्लब से जुड़ा हुआ था। रोटरैट क्लब आपको काफी पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता, रोटरैट क्लब ऑफ वाकनाघाट। तो मैं उसमें एज अ मेंबर था, और हम कश्माड़ी एक विलेज में गए थे प्रोजेक्ट करने। ठीक है, पास में ही विलेज है, अब अपने माउंटेन से आप नीचे उतरोगे तो कश्माड़ी ही आता है, मतलब दिख जाएगा, मिल जाएगा आपको। अब उसमें हम गए, हमने उनकी प्रॉब्लम्स पूछी, और प्रॉब्लम से पता चला कि एक प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं, वो स्ट्रीट लाइटनिंग का है। हमने फंड्स इकट्ठा किए और हमने स्ट्रीट लाइट्स लगा दी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा प्रोजेक्ट था। स्ट्रीट लाइट तो हमने खुद ने नहीं बनाई, हमने गए, हम पैसे दिए, खरीद के ले आए, सब बहुत सिंपल था। मैंने एक चीज देखी, कुछ साल बाद भी, 1 साल बाद भी वो स्ट्रीट लाइट जल रही थी, और जब हमने प्रधान जी से बात करी तो ही यूज्ड टू से कि आज भी वो लाइट है, और नाइट लाइफ सी आ गई है। अब बच्चियां जो है वो ट्यूशन जा सकती हैं, बहुत सारी चीजें एक बढ़ गई उसकी वजह से, और
एक एग्जाम्पल सा सेट हो गया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हम जो हमारे लिए बहुत छोटी चीज है वो किसी के लिए बहुत बड़ी है। और जब आप लाइफ चेंज करना स्टार्ट करते हो ना किसी की, आपके इन्फ्लुएंस से, बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है वो। मुझे समझ में आ गया थर्ड ईयर तक कि मुझे क्या करना है। फिर मुझे लगा अब ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जो मैं कर सकता हूँ। तो मेरे पास एनजीओ थे एंड सोशल साइंसेज में कैरियर था और सिविल सर्विसेज था। फिर मुझे समझ में आया कि मेरी कैरियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि यार मैं कुछ कमाऊँ ना, कैरियर प्रोग्रेस, पावरफुल पोजीशंस भी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इनोवेशंस करने हैं। आई वॉज वेरी क्लियर, सिविल सर्विसेज इट इज। जब मैंने एक बार डिसाइड कर लिया, आई कमिटेड टू सिविल सर्विसेज, आई वॉज वेरी क्लियर मुझे ये करना है। प्लेसमेंट में मैं बैठा जस्ट बिकॉज टू नो माई पोटेंशियल, बट मार्च आते आते फोर्थ ईयर में मैंने अपने डिक्लाइन कर दिए सारे प्लेसमेंट। मेरे 2 जगह प्लेसमेंट हुए थे, डिक्लाइन कर दिए। मेरे दोस्त उस टाइम वो अभी हैं भी, दे यूज्ड टू से कि यार संदीप ये क्या कर रहा है, ऐसे मत कर, 1-2 साल एक्सपीरियंस ले ले, क्या होगा आगे, यू नेवर नो। और यूपीएससी में यू यूनियन नहीं है, यूपीएससी में यू अनप्रेडिक्टेबल है। तो इसीलिए एक लेवल के बाद यहाँ सब लक है, कौन सा सब्जेक्ट परफॉर्म कर जाए। मुझे पता था पर मैंने रिस्क लिया, क्योंकि पता है मैंने अपनी लाइफ में कोई रिस्क लिया ही नहीं था पहले। आई वांटेड दिस थिंग कि कुछ बड़ी सी कुछ चीज तो हो लाइफ में, चलो फेल भी हो जाए पर फेलियर की स्टोरी तो होगी, कुछ स्टोरीज तो हो। कुछ स्टोरी ही नहीं है। अब दिस वाज द थिंग दैट मोटिवेटेड मी। सब जॉब सब मैंने वो करके आगे बढ़ा और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा निकल गया, मेंस निकल गया, प्री निकल गया। आई वाज वेरी हैप्पी। और उसी के दौरान मैं आया था कॉलेज में, जब मेरे रिजल्ट से, फाइनल रिजल्ट से पहले, जो बजाज सर बोल रहे थे, आई वाज वेरी हैप्पी। फर्स्ट अटेम्प्ट में एवरीथिंग विल हैपन, बट द रिजल्ट वाज डिवास्टेटिंग। 17 मार्क्स से मेरा नहीं हुआ एंड आई गॉट वेरी लेस इन इंटरव्यू। तो वी ऑल नो यूपीएससी का पर्सनैलिटी टेस्ट कैसा होता है, बहुत अलग होता है। ओके, मैं परफॉर्म नहीं कर पाया उसमें और मुझे ऐसा लगा ये शायद कुछ पर्सनैलिटी में तो कमी है, अभी तक पूरा डेवलप हम नहीं हो पाए हैं। ठीक है, सो देन मैंने ये चीज समझी। 17 दिन बाद ही मेरा प्रीलिम्स था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट से मैंने ये सीखा कि भले ही आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, केयरलेस मत होना। ओके, आई वॉज केयरलेस, यू नो। मुझे ऐसा लगा मेरा 100% होगा। मैंने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी नहीं की। 17 दिन के अंदर ही नेक्स्ट प्रीलिम्स हो गया और मेरा प्रीलिम्स में नहीं हुआ। मेरे 1 साल बर्बाद हो गया। फिर मेरे को बड़ा बुरा लगा और 2 फेलियर्स, आई वॉज इन डिप्रेशन एंड एवरीथिंग। बट मुझे ये पता था कि जो इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं वो आगे निकाल सकते हैं, उन्हें रिस्क लेना चाहिए। नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, सिंपल चीजों को कॉम्प्लेक्स कर गया। फिर मेरा प्री हुआ पर मेंस नहीं हुआ। और फिर मैंने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा कि यू हैव टू बी सिंपल ऑल्सो। हार्डवर्क का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज को कॉम्प्लेक्स कर दो। आपने देखा होगा हम रिलेशनशिप और बहुत सारी जगहों पर चीजों को बहुत कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, चीजें सिंपल रहनी चाहिए हमेशा। मैंने अपना 4th अटेम्प्ट दिया बिल्कुल, क्योंकि मेरे मेंस में बहुत अच्छे नंबर आए थे, एक ही सब्जेक्ट में कम थे, उसमें मेरे को 100 नंबर का नुकसान हो गया था। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि 4th अटेम्प्ट में मैंने ये देखा बहुत ही एनर्जी सी आई मेरे अंदर, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया था। कुछ सब्जेक्ट्स में इंडिया में हाईएस्ट थे मेरे मार्क्स, टॉपर से भी ज्यादा थे। मुझे ऐसा लगा मैं कर सकता हूँ। एविडेंस था, वो एविडेंस लेके गया पेरेंट्स के पास कि मेरे को पैसा चाहिए और मेरे को टाइम चाहिए। और वो लोग बोल रहे थे जॉब कर लो। मैंने बोला नहीं, मुझे पैसा और टाइम चाहिए, आप मुझे दो, मैं आपको वापस कर दूंगा अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। बट मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने हेल्प की। क्योंकि मैं 25-26 का हो गया था, तब आप बिल्कुल भी ऐसे विदाउट जॉब कैसे सस्टेन करोगे। देन आफ्टर दैट मैंने 4th अटेम्प्ट दिया। 4th अटेम्प्ट में मैंने सारे स्टेजेस क्रॉस किए, पर इंटरव्यू में 12 नंबर से रह गया, रिजर्व लिस्ट में 3 नंबर से रह गया। ठीक है, अब मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन समझ में आया लाइफ का। पता है, यहाँ पर मेरी गलती नहीं थी, यहाँ पर लक था। तब मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि लाइफ में एक टाइम के बाद लक मैटर करता। उस टाइम उसमें ईयर में ज्योग्राफी ऑप्शनल जो मेरा था वो परफॉर्म नहीं किया। ओके, इट परफॉर्म्ड लो, मेरा नहीं हुआ, 12 नंबर से ही नहीं हुआ, जबकि मेरे 50 मार्क्स लेस आए थे। तो मैं मतलब इंडियन पुलिस सर्विस में तो पहले ही होता, बट प्रॉब्लम हो गई। अब जब
ये सबसे नेगेटिव टाइम होता है लाइफ का, जब आपको लगता है मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इम्प्रूव क्या करूं, लक नहीं है मेरे साथ। तो मैंने ये फील किया कि यार नसीब नहीं है, छोड़ देते हैं। लगता है मेरा, अब वो सबके माइंड में सब ये थॉट आते हैं ना कि शायद मैं यूपीएससी के लिए बना ही नहीं हूँ, चाहे मैं ऑफिसर क्वालिटी है ही नहीं मेरे अंदर, एंड चाहे भगवान मेरी और डेस्टिनी खोज रहा है या कुछ, दिस थिंग्स कम। बट मेरे एक फ्रेंड है आईएएस है, वो अभी हिमाचल प्रदेश में पोस्टेड है, उसने मुझे एडवाइस दी कि संदीप एक अटेम्प्ट दे दे, तू बस दे के आ जा, पढ़ मत, अपियर हो जाए एग्जाम के लिए। मैं अपियर हो गया और इस बार मेरी 290 रैंक आ गई। ओके, सो जो मतलब कहने का जो वो है वो ये है कि यू हैव टू शो अप। ओके, चाहे लक साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, चाहे हार्डवर्क के रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ऐसा बहुत बार होगा लाइफ में, समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, पर अपना कर्म नहीं छोड़ना है, पढ़ना है। अगर स्टूडेंट हो तो रोज 3 से 4 घंटे पढ़ना है। अगर प्लेयर हो जैसे नीरज चोपड़ा है तो उसे जेवलिन थ्रो करनी है, वो उसका धर्म है, कर्म है। ओके, सो रामायण में मैंने एक देखा था, धर्मो रक्षाति रक्षिता। ओके, अगर तुम अपने धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और धर्म यहाँ पर रिलीजन नहीं है, राइटियसनेस है। ओके, सो जो राइट थिंग है करने को उसको करो। अब जैसे मैंने यूपीएससी की 5 साल मैंने कोई स्टेट का एग्जाम नहीं दिया, कोई एग्जाम नहीं दिया, पता है, ना ही एमटेक ना कुछ, क्योंकि आई वॉज फोकस्ड, मुझे यही करना था। तो ये कैसे आएगा? ये आपको इसी से आएगा। आप पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, भले ही रिजल्ट ना आए, एक ना एक दिन प्रकृति ना आपको बचाएगी। मैंने ये देखा है, कैसे भी करके आपको ना पिक कर लेगी कहीं से भी, आपको गिरने नहीं देगी। तो हैव गुड इंटेंशंस और हमेशा वर्क कर। यहाँ नेगेटिव नहीं होना है कि मेरी लाइफ ऐसी है, या फिर बहुत लोग नेगेटिव डिप्रेस, मैंने देखा आईआईटी से पढ़े हुए टॉप रैंकर थे, टॉप 10 में आए थे, बट आज वो ऐसे डिप्रेस हालात में दिल्ली के किसी कोने में है, और मैं मतलब वो डिप्रेस्ड है। अभी रिसेंटली किसी ने सुसाइड भी किया। ये सब चीजें क्यों हैं? बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ दिस क्लैरिटी, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, एंड ऑल्सो द मोटिवेशन एंड एनर्जी। आपको लक जो होता है उसको भी हैंडल करना आना है। हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि आप सिर्फ हार्डवर्क करो, हार्डवर्क, एंड पर ऐसा नहीं होता है, एक लक भी होता है। ओके, मैं ऐसा बिलीव नहीं करता, मैं तो लगता था सिर्फ वो एक्सेप्ट इट और मूव ऑन, अनअटैच्ड। ओके, अभी इस बार नहीं होता, मैंने कुछ और सोच लिया था, मैं करूंगा और अनअटैच्ड रहना है। और एक और चीज, ये 5 साल क्या था ऐसा ड्राइविंग फैक्टर जो मेरे को मोटिवेट कर रहा था कि मैं सिविल सर्विसेज करूं? वो ये था कि मैं सर्विस में आने के बाद कितना कुछ बदल सकता हूँ। यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो होती है वो वर्ल्ड की सिविल सर्विसेज सारे कंट्रीज की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मानी जाती है। क्यों? यहाँ पर आप अपने इनोवेशंस, आइडियाज डायरेक्टली रख सकते हो सामने। अब जैसे मुझे आईपीएस मिले, इंडियन रेवेन्यू मिले, आईएएस मिले, कोई एक डिपार्टमेंट या एरिया मेरे अंडर होगा और मैं उसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ जो मैंने सोचा है, जो मेरा एक ऑब्जेक्टिव था। तो मैं हमेशा रात में सोने से पहले यही सोचता था कि यार अगर मैंने किसी एक रीजन, किसी एक पर्सन की भी जिंदगी बदल दी, हाउ मच बिग इट विल बी। ओके, सो काइंड ऑफ एनर्जी कम्स कि ये जो प्रिपरेशन है ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं उन लैक्स ऑफ लोगों के लिए कर रहा हूँ। ओके, आप ये खुद सोचो, क्रिस्टोफर कोलंबस जब गया था अपने वॉयाज में, उसे कैसे समझ में आया मेरा डिस्कवरी एक अमेरिका की डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड चेंज कर देगा, मतलब एवरीथिंग विल चेंज आफ्टर दिस। सो हैव अ बिग पर्पस, दैट बिग पर्पस इज बिगर देन यू। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जो ये सोच के आते हैं ना मेरे को अपने माँ बाप को खुश करना है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट पानी है और अच्छी जॉब लेनी है, उसका सिविल सर्विसेज कभी नहीं निकलता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा कंसिस्टेंट रहना है। यहाँ पर वो कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस कैसे आएगा? एक बड़े ऑब्जेक्टिव के साथ आएगा कि यार अगर मैं फेल हो गया तो लैक्स ऑफ पीपल फेल हो जाएंगे, हाउ कैन आई फेल? नहीं होना है फेल, और एक अटेम्प्ट जल्दी से दो। दिस इज द थिंग। ओके, बी क्लियर व्हाट यू हैव टू डू। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर में जाएगा और बहुत अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। सिविल सर्विसेज क्या है? सिविल सर्विसेज की एक बात है कि वो दिखती है सोसाइटी में, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं। कोई आर्मी में जा सकता है, कोई फाइटर पायलट बन सकता है, कोई टेक्नोलॉजी में एमटेक करके फॉरेन में कुछ कर सकता है, बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़ी रिसर्च कर सकता है। आप देख सकते हो वैक्सीन,
the biotech people are doing it. So what you have to understand is, जैसे सर ने बोला, VC सर ने बहुत अच्छी बात बोली, एक चीज, find that one thing you can die for and then you start living. So एक चीज अपनी पकड़ लो कोई सी, जैसे बजाज सर को, अमित सर को ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और हमें बहुत अच्छे से पता है क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ाया, बड़े इंटरेस्टिंगली पढ़ाते थे. एक चीज पकड़ो और गो डीप इनटू इट, बी द बेस्ट ऑफ इट. जैसे किसी ने अगर सॉफ्टवेयर का कोई एक कोर पकड़ा हुआ है, जैसे डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आपको इंडिया या पूरे वर्ल्ड में कोई हरा नहीं सके उस चीज में. एक चीज जो आपकी है यूएसपी. और आज के आने वाला समय ऐसा ही है, जब तक आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं होगे, आप उस टॉप लीडरशिप पोजीशंस में नहीं पहुंच सकते. कंपटीशन बहुत हाई है. चूज दैट वन थिंग. आपके पास अभी टाइम है, 1 महीना लो, अच्छे से सोचो व्हाट इज दैट वन थिंग यू कैन डू, कि मेरे को ये करने में बड़ा मजा आता है, और फिर उसकी रिलेटेड कैरियर चूज कर लो कि ये कैरियर है. देख लो कि सिप्ला, जैसे मान के चलो सिस्को है, सिस्को के एक प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है तो उसे पकड़ लो, यार सिस्को कंपनी टारगेट कर रहा हूँ और ये ऐसा, अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजीज बनाओ. एज सुन एज यू प्लान यू हिट इट. और हाँ, टाइम लगेगा पर टिके रहो. तो यहाँ इस गेम में आपको विराट कोहली नहीं होना है, ना आपको सचिन तेंदुलकर ऐसे नहीं होना है. ओके, दे आर वेरी गुड इन प्लेइंग. यू हैव टू बी राहुल द्रविड़, क्रीज पे रहना है. ओके, देखो हर फील्ड में यू विल फाइंड जो टिक गया वो जीत गया. सिंपल सी बात है, टिकने का ही गेम है ये पूरा. जितना चल रहा है सब टिकने का है. और टिकना कितना, मतलब लग बहुत इजी रहा है पर होता बहुत मुश्किल है. टिके रहो. रिलेशनशिप है, आज हम कहाँ टिक रहे हैं, कितनी आसानी से डिवोर्स हो रहे हैं. टिकना होता है. ट्रबल टाइम्स में, ट्रबल वाटर्स जब होते हैं शिप में, क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी सुनो, टिकना होता है. कोई बात नहीं, थोड़ा देर रुक जाता हूँ. दैट थिंग मतलब इज वेरी इंपॉर्टेंट. भले रन नहीं मार रहा है द्रविड़, बट इट्स ओके. द्रविड़ मैं आउट नहीं होता कम से कम. ओके, सो दीज आर सर्टन थिंग्स जो मैं जरूर चाहूंगा कि आप उस चीज को करो. ठीक है, ये चीज मेरे को कैसे आई थी, मैंने कॉलेज के न्यूज़पेपर में जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, मैंने एक चीज पढ़ी थी, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके. तो क्या होता है कि हमें सोसाइटी बहुत कुछ देती है. जैसे मुझे खाना, जैसे मैं जब कॉलेज में था मैं सोचता था कि खाना कहाँ से आ रहा है, ये टैंकर बड़ा सा जो नीला टैंकर चलता है कहाँ से आ रहा है ये. तो मुझे बताते थे गार्ड्स की, बेटा ये यहाँ से आ रहा है, ये एक विलेज से आ रहा है, और ये जो खाना है ये कहीं से आ रहा है, ये किसी फार्मर ने, मतलब पड़ोस के किसी से हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया ऐसा. तो मैंने बोला कि ये सोलन के विलेजेस और सोलन डिस्ट्रिक्ट पूरी इतनी कंट्रीब्यूट कर रही है हम लोगों के लिए, है कि नहीं. भले आप ये देखिए, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, हमें पानी दे रही है, सब दे रही है. हम क्या दे रहे हैं? व्हाट आर वी गिविंग? नथिंग. हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो ये कर रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं. अब एक बार मैं जरूर आपसे गुजारिश करूंगा, जाओ उन विलेजेस में, कंट्रीब्यूट. अब लेना कब तक लेना, देना भी सीखना है. ओके, और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ये मैंने भागवत गीता में पढ़ी है, बहुत ही ट्रू है. सबसे बड़ा पेड़ फॉरेस्ट में कौन सा होता है? जिसके सबसे डीप रूट्स होते हैं और जो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को होल्ड करता है. एज सिंपल एज दैट. और ये नेचर का प्रिंसिपल है, जो जिसके जितना ज्यादा काम आया ना, वही सबसे बड़ा बना है. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, अपने दिमाग में ये प्रिंसिपल रखो. तुम आज से स्टार्ट करो. घर में हो, मम्मी की हेल्प करो. अगर कॉलेज में हो, टीचर्स की हेल्प करो, या फिर टीचर्स की कुछ प्रोजेक्ट्स. आप देखो, पता है हम जब कॉलेज में थे तो हम, घनश्याम सर थे, बहुत सारों के पास हम जाते थे, पूछते थे कि सर आप किस चीज पे काम कर रहे हो, हमें बताओ तो सही. और वो हमें बड़े मजे से बताते थे कि ऐसा कॉग्निटिव रेडियो है और ऐसा है. और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि वाओ यार. और आयरॉनिकली एक क्वेश्चन इसी से आया था मेरे आईएएस इंटरव्यू में अभी रिसेंटली, और वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था. वो क्वेश्चन ये था कि टीवी का रिमोट टीवी के सामने से ही चलता है, ठीक है, बट कार का रिमोट कहीं से भी चल जाता है, उसको लाइन ऑफ साइट की जरूरत नहीं होती. क्यों? द सेम प्रोजेक्ट हमने कॉलेज में किया था. ओके, वो कॉलेज का प्रोजेक्ट नहीं था, वो हमने खुद ने किया था, अपने पैसे फंड करके हमने डोर सेंसर बनाया था. तो मुझे पता है इंफ्रारेड सेंसर होता है जो ऐसे काम करता है. इस तरीके से आपकी एक्सप्लोरिंग एबिलिटी जो होती है ना, हेल्प करने की दूसरों को,
आपके कनेक्शंस बिल्ड करती है। एट द एंड ऑफ द डे जब आप देना स्टार्ट करते हो फायदा आपका ही हो रहा होता है, और वो हमें पता नहीं होता है। हम सेल्फिश होके बस अपना अपना कलेक्ट कर रहे हैं। आप नॉलेज जितनी दोगे you'll फाइंड कि विजडम आपके अंदर खुद आ रही है। सो इसीलिए मेरा एक ही सजेशन है आप सबको ना, अभी से कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो। कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट लेके चले जाओ, किसी की समस्याएं सुन लो, उन्हें सॉल्व करो। तुम टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस के एक मेंबर हो, ओके, एक बहुत ही प्रोफेशनल इंजीनियर बनने वाले हो। व्हाई नॉट फ्रॉम टुडे go to them, solve their problems, what engineers do, this is in our blood। 4 साल में यही सिखाया जाएगा कैसे अप्लाई करना है। डू इट फ्रॉम नाउ, ओके। कॉलेज में हो, अभी घर में होंगे, आप कोविड में कहीं हेल्प करो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहो। अब जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी, क्यों लिखा रहता है उसमें कि एनजीओ में सर्टिफिकेट्स लगते हैं, एसओपीज एंड ऑल, ये सब आपको तब पता चलेगा। तो एक बहुत अच्छी कहावत है, वो गांधी जी ने बोली है, when you lose yourself in the service of others then you find yourself, okay, so it's opposite, okay। so ये वाली मेरी एक एडवाइस है, क्योंकि मैंने ये बहुत लेट सीखा, और मैंने काश मतलब अभी मैंने ये सीखा 2018 में मैंने ये प्रिंसिपल सीखा, तब मुझे समझ में आया कि हाउ दिस गोज ऑन, ओके। देन मैं आपको बताता हूँ एक और इंसिडेंट है जो मेरे को बड़ा मोटिवेट करता है। हम 3 फ्रेंड्स हैं, शुभम, निखिल, अजीत कुमार सिंह और मैं। हम तीनों बड़े अच्छे जिगड़ी यार हुआ करते थे कॉलेज में, हैं अभी भी हैं, अभी भी वो सुन रहे हैं, आए हुए हैं इसमें। तो हमने एक ट्रैक लिया था, अपने यहाँ पे एक ट्रैक चले गए, और एक दूरदर्शन का टावर दिखता है कॉलेज से, ध्यान कक्ष के सामने आप देखोगे कसौली दिखता है वहां से, ओके। कसौली दिखा हमें, और मैं चला गया, हम तीनों चले गए। 30 आवर्स की ट्रैक थी, कसौली पहुंचे उस टावर तक। जब भी मैं डिप्रेस था ना, तो मैं उन कुछ मोमेंट्स को याद करता था उस जर्नी में जो आए थे। जर्नी में मैंने क्या 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सीखी थी। सबसे पहले, हमें हमेशा टीम में रहने की क्यों जरूरत है, हम अकेले भी तो काम कर सकते हैं। अब क्या है, आपको ये चीज तभी समझ में आएगी जब आप अप्लाई करोगे। अब आपको कोई बता दे तो वो उससे नहीं पता है। हमने जो जर्नी ली, हम 2 लोग नेगेटिव हो गए बीच रास्ते में, बोला यार ये तो नहीं हो पाएगा। पर एक लड़का था शुभम, उसने हम दोनों को बोला कि यार ट्राई करते हैं ना, थोड़ा सा आगे निकलते हैं, मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हें आना है तो आ जाओ। मतलब उसने हमें सपोर्ट किया। हमने बोला तेरा दिल रखने के लिए आगे चले जाते हैं। कुछ देर आगे बढ़े तो वो डिप्रेस हुआ, और तब तक हमें एनर्जी आ गई थी। तब मैंने एक चीज रियलाइज करी कि टीम का बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक टीम, क्योंकि कोई ना कोई आपको उस ऑब्जेक्टिव की याद दिलाता है, ओके। सो टीम। सेकंड चीज जो मैंने देखी, कभी कभार आपको अपना लक्ष्य दिखेगा नहीं। हम वो टावर को देख तो रहे थे, पर पहाड़ों की वैलीज में घुसे ना, जब थिक फॉरेस्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा था वो दूरदर्शन टावर, हमें से लगा हम खो गए। बट देन वी रियलाइज्ड थोड़ा सा चलो, और चलते रहो, बस अपना काम करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा दूरदर्शन का टावर हमें दिखा, हम पहुंच गए। सो दिस इज द थिंग, ट्राई टू लर्न फ्रॉम ऑल इंसिडेंट्स। जो भी चीज हो रही है आपकी लाइफ में, एक पर्पस है उसका। नेचर कोई चीज रैंडमली नहीं कर रही है। आप ये देखोगे कोई भी चीज रैंडम है वो हट जाती है। जैसे जो फ्रूट है, उसका काम जैसे ही पर्पस खत्म हो गिर जाएगा वो, ओके। सो देयरफॉर आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज बी ओपन, एक्सप्लोर, बी एडवेंचरस। फेलियर्स आएंगी, आने दो, कितना फेल हो सकते हो, गो टू दैट एक्सटेंट, ओके। और हमेशा अपने आप को मोटिवेट करके जो रखना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाई एनर्जीज, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोग हैं, दे आर डेड इनसाइड। कोई एक रिलेशनशिप है या कोई एक फेलियर है, या क्लास 5 में किसी ने सैक रेस हार गया था, और वो फेलियर अपने माइंड में अभी भी चल रही है, पता है, मैंने देखा है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। मैसेज टू द जूनियर्स इज दैट ओनली, मैं जो अपने दिल से बोलता हूँ, मूव ऑन करो, फेल हो गए, इट्स ओके, अगेन कम अप, कुछ बहुत बड़ी सी कोई चीज करो, है ना। तो अपने आप को यू आर लाइक अ यूनिक पर्सन विद दोज एबिलिटीज जो किसी के पास नहीं है। तुम्हें अपने आप को स्पेशल समझो, एंड पर ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, बट एंटर इनटू दोज डार्कनेस, फील डार्कनेस एंड एवरीथिंग, ओके, डोंट फियर दैट। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा मजा वहीं आता है, पता है, जब रात में आप सोते हो, आपको समझ नहीं आ रहा होता कल क्या होगा। That thrill experiences, these are the best in life,
ओके, एंड यू विल ऑलवेज चेरिश दिस मोमेंट। अभी मैं बन गया हूँ ना, बड़ा मैं रिलैक्स सा हो गया हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है करने का, तो मैं सोच रहा हूँ वो दिन बड़े ऐसे थे, मैं सुबह 5 बजे उठता था, बड़ा एक्टिव रहता था। स्ट्रगल्स, लव द स्ट्रगल्स, ओके, मतलब जितना आप सक्सेस से प्यार करते हो, स्ट्रगल और फेलियर से भी करो, दे आर योर गुड फ्रेंड्स, ओके। सो ये आई विल टेल यू, वेल मैं कुछ मिथ्स क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो उस कॉलेज में है मैं, मेरे भी मिथ थे जो मैं चाहता था कि काश मुझे मेरे कोई क्लियर कर देता। देखो, हमको आज तक यही सिखाया गया है कि नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है, हार्डवर्क इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, पर किसी ने हमें ये नहीं बताया कि कनेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जो हमारे जो कनेक्शंस होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कनेक्शंस आपके फैमिली के साथ, कनेक्शंस आपके टीचर्स के साथ, कनेक्शंस आपके फ्रेंड्स के साथ। तुम्हें पता है, जब मेरा बहुत डीप डार्क फेस था, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट किया था। पता है, हम केदारनाथ ट्रिप में गए थे, उनने बोला कि संदीप को ले चलो, बेचारा बहुत दिन से पढ़ रहा है, और उनने मेरा ट्रिप फाइनेंस किया, यू नो। सो फ्रेंड्स, जो अभी आपका टाइम है, बिल्ड कनेक्शंस, उनसे बात करो, उनकी प्रॉब्लम समझो, अंडरस्टैंड तो करो। कितना एडवेंचर है, किसी को अंडरस्टैंड करना भी एक एडवेंचर है। उसकी लाइफ में झांको, क्या क्या हुआ होगा, कितनी एक्साइटिंग जर्नी होगी। राकेश बजाज सर हमें काफी अपने इंसिडेंट बताते थे पहले के, हम बड़े ऐसे ईगरली सुनते थे और उनसे सीखते थे, क्योंकि आप सोचो कि बजाज सर अब इतने टॉप पोजीशन में है, और उनकी जो एक चीजें जो उनने सीखी है, अगर वो आपके पास आ जाए तो आप मतलब हाउ ब्लेस्ड यू आर। तो प्लीज टीचर्स, इन सबसे कनेक्ट करो, अपने आप को अलूफ मत रखो। मैंने अपने बैचेस में देखा था कुछ लोगों को एक ही रूम में पड़े रहते थे, और बहुत ही मतलब मुझे समझ नहीं आई उनकी लाइफ की क्या है, बड़ा एनर्जी लेस से लगे, ओके। तो डोंट बी दैट। दूसरी चीज, हमें पीयर प्रेशर के अंदर बहुत सारी चीजें करवाते हैं कॉलेज में, राइट, सिगरेट, लिक्वर एंड एवरीथिंग। यार ये ट्राई करके देखो यार, कभी एक बार तो पी के देखो कम से कम, ओके। ये सारी चीजें होती हैं, पर मैं इस ट्रैप में ना कभी फंसा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये चीजें सारी की सारी टेम्पररी है, ओके। एक बंदा मेरे पास आया था, मुझे आज भी याद है, उसने बोला था कि एक बार लिक्वर तो ट्राई करके देखो, सब ट्राई करना चाहिए कॉलेज लाइफ में। मैंने उनको ये बोला कि सर आप एक चीज बताओ, आप मेडिटेशन भी तो ट्राई करके देखो। अगर आप इतने बड़े एक्सप्लोरर हो, आप हर चीज ट्राई करना चाहो, मेडिटेशन भी तो करके देखो। और अच्छा, अगर जैसे बोलते हैं हम पब डिस्को में जाएंगे, मैंने बोला बड़ी अच्छी बात है, जाना चाहिए, जाओ, पर कभी एक विलेज को भी तो डेवलप करके दिखाओ, अपने कोई एक सब्जेक्ट में टॉप करके भी तो दिखाओ। ये क्यों नहीं है पीयर प्रेशर? ये मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया, ये इतनी हिपोक्रेसी क्यों है एक ही डायरेक्शन में? ये भी तो चीजें हैं। विलेज, कोई आप एक विलेज को डेवलप करके तो देखो। हमने कुछ प्रोजेक्ट्स किए, इतना अच्छा लगता है, इतना डिफिकल्ट काम है वो, कोई वो चैलेंजेस लेना नहीं चाहेगा, ओके। नो चैलेंजेस, पता नहीं अलग टाइप के चैलेंजेस है, उस लड़की को अप्रोच करके दिखाओ। ये मतलब ये अलग टाइप की एक हमारी एक सोच रहती है कॉलेज ईयर्स में। इस ट्रैप से बचो, ओके। अपने आप को बैलेंस कर लो। हाँ, जाओ पब डिस्को, वो भी लाइफ है, बट इसमें भी तो आओ, ये भी तो लाइफ है, ओके। अब कोई पेंटिंग बहुत अच्छा बनाता है, पता है, तो मेरे एक फ्रेंड है, पेंटिंग बहुत अच्छा बनाता है, उसे दिल्ली की ब्यूटिफिकेशन का एक प्रोजेक्ट मिला हुआ, जॉब भी कर रहा है और वॉल पेंटिंग भी कर रहा है। मैंने कैलीग्राफी सीखी, यू नो। कुछ ऐसी चीज आप जरूर एक्सप्लोर करो। अगर आपको एडवेंचरस बनना है तो रियल में एडवेंचर बनो, ऐसा नहीं है हिपोक्रेसी वाला, ओके। सिर्फ जूनियर्स को परफेक्ट बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मतलब काफी वो होता है। और दूसरी चीज, तीसरी चीज, हमें ये सिखाया जाता है कि सिर्फ काम करो, हमें ये कभी नहीं बोला गया है कि रेस्ट भी इंपॉर्टेंट, ओके। सो अपनी लाइफ का संडे या सैटरडे हमेशा फ्री रखो, तुम्हारी लाइफ भी है, ओके। ट्रैक करने जाओ, मस्ती मजाक करो, दोस्तों के साथ घूमो, ध्यान कक्ष में बैठो, एंड डू दोज थिंग्स, बी लाइक रेस्ट को भी एक प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। सो एक बहुत बड़ी कहावत है, प्रॉपर रेस्ट इज हाफ वर्क डन, ओके। कीप दिस इन माइंड, दैट रेस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है, पर रेस्ट भी लो, ओके। अब मैं इसीलिए मैं ऐसे फील्ड से आया हूँ, यूपीएससी में सब 24 घंटे पढ़ते ही रहते हैं, और इतने डिप्रेस हो गए हैं वो, उनके मतलब यहाँ पर ऐसे एकदम ऐसा आपको लगेगा कि बड़ा एकदम
टेंशन है, इन पूरी दुनिया का बोझ इनके ऊपर है। ओके, छोटे से रूम में रहते हैं, वो स्ट्रगल बहुत हाई लेवल का होता है। तो मैं तो सिविल सर्विसेज सिर्फ उसी को रिकमेंड करूंगा जो बहुत ही क्लियर है अपने एम में कि यही करना है। अगर मतलब क्योंकि उसके बाद फिर आप कहीं के रहते नहीं हो अगर वो नहीं निकला तो। ओके, अब 5 साल बाद मेरे को कौन जॉब देगा अगर मैं ड्रॉप ले लेता हूँ तो। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपको ये वाली चीज समझनी है, प्रॉपरली उसे अंडरस्टैंड करके क्लियरली टारगेट करना है और उसकी स्ट्रेटजी बनानी है, प्लान बिल्ड करना है और आगे बढ़ना है। चौथी चीज जो एक मैं बोलना, सेल्फलेस, बी सेल्फलेस। सिर्फ अपना ही इंटरेस्ट मत देखो, और भी लोगों का देखो। जैसे अमित सर ने मुझे सिखाया था कि सिर्फ ये मत देखो कि तुमने प्रोजेक्ट कर दिया और दे रहे हो, भाई ये उसकी सेफ्टी भी तो देखनी है। ओके, सबको लेके चलना, जो सबको लेके चलेगा आगे वही आगे बढ़ेगा। और बी सेल्फलेस। और जो रियल हैप्पीनेस है, ऑलवेज रिमेंबर, मैं एज ए सीनियर बोलना चाहता हूँ, पावर, अभी मेरे पास बहुत रिस्पेक्ट आ रही है, पावर है, पावर, रिस्पेक्ट, मनी, आपको जितनी भी दे दी जाए वो कम है। ओके, ये तो नेवर एंडिंग साइकिल है। तो अगर आप भागोगे तो कभी सेटिस्फाई होना नहीं है। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर, हैप्पीनेस हमेशा इंटरनल होती है, तो अंदर आपको जाना पड़ेगा उसके लिए। तो आप समझो कि मुझे क्या करना है और वो चीज करो। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स कि ये वाली एस्पेक्ट है या फिर वो है। नो, व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाई आई एम डूइंग। द स्ट्रॉन्गर योर व्हाई इज, एनी हाउ यू कैन हैंडल। ओके, जिसका वाई सबसे बड़ा है वही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनेगा। ओके, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा। ओके, और एक बहुत अच्छी सर ने बात बोली, वीसी सर ने, उनने भी यूपीएससी एम किया था एक टाइम पे। तो मैं जरूर बताना चाहूंगा, हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होती है। पता है क्यों इंपॉर्टेंट होती है? इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आपको सक्सेस मिल जाएगी, ये तो थोड़े नैरो ऑब्जेक्टिव्स है। हार्डवर्क में बहुत मजा आता है। ओके, आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट लिक्वर पी लो, आप इस दुनिया की सबसे अच्छे पर्सन से भी मिल लो, पर हार्डवर्क होती है ना, दैट इज द वन दैट अलाउज यू टू बी, मतलब टू बी वेरी लाइक एंजॉय, लाइक द रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम हार्डवर्क। आज भी मैं फ्री बैठा हूं ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा हूँ। ओके, कुछ भी हार्डवर्क में लग जाओ, बड़ा मजा आता है। मैं बता रहा हूँ, रात रात भर, सुबह जल्दी उठ के ये कैसे करना है, स्ट्रैटेजी बनाने में और किसी चीज में लगने में जो एक पैशन होता है ना, बहुत कम लोगों को नसीब होता है, क्योंकि सब एवरेज लाइफ जीने वाले हैं। ये आप समझना, कुछ ही आएंगे जो एकदम बबल की तरह ऊपर उठते हैं। तो हार्डवर्क से प्यार करो, अच्छी चीज है हार्डवर्क, हार्ड नहीं है वो, एक्चुअल में सबसे अच्छा काम है। और भागवत गीता में भी आप पढ़ोगे तो यू विल फाइंड, क्या लिखा है, कर्म ही सब प्रधान है। आप जिसने कर्म किया है ना वही खुश है। जिस दिन आप रह गए, स्टैंड बाय कर गए अपने आप को, आपकी ग्रोथ बंद हो गई, आप फिर यू कांट गो फर्दर। ओके, और दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि हार्डवर्क, लव द हार्ड, लव, जो एक, सोचो आप अपनी मम्मी से कितना प्यार, उतना ही प्यार हार्डवर्क से करो। कि जब आपको कोई बोले कि यार किसी ने प्रोजेक्ट किया, बड़ा मेहनत का काम है, एक स्माइल आ जानी चाहिए, अरे मेहनत का काम है, मजा आएगा। चेंज दिस परसेप्शन। ओके, सो ये चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा। और मैं एक चीज लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर ऑल ऑफ यू। एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग कम्स अप, प्लीज टेल मी। ओके, मैंने जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको भी बोला एलुमनाई की, आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी, चाहे वो फंड से रिलेटेड है, किसी चीज से भी रिलेटेड है, आप बताइए, आई विल अरेंज समथिंग, आई विल डू समथिंग। और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत चाहते हैं। Always remember one thing, okay? Whenever the college calls, you never say no. Okay? You never say no. This is the because whatever you are, it is because of this. Okay? So respect the college. जाओ टीचर से एकदम मिलो, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। और मैं बता रहा हूँ, अभी हम तपन सर से मिले थे, वो हमारे प्रोजेक्ट गाइड थे, बड़ा। और मैं ये फील करता हूँ टीचर्स को जो खुशी होती है ना, मैंने बजाज सर को क्यों मैसेज किया रात में 12 बजे, टीचर को कौन मैसेज करता है कोई। आई वॉज वेरी हैप्पी, एकदम 24th की लेट इवनिंग आया था रिजल्ट, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब उन टीचर्स को बोलूं, क्योंकि बजाज सर मुझसे हर साल पूछते थे, संदीप क्या हुआ, मैं बड़ा डिप्रेस होकर बोलता, सर नहीं हुआ ऐसा। तो अब हाउ द टीचर वुड फील, वाओ,
हो गया, अब हो गया। तो ये हम जो वो एस्पेक्ट होता है, ये कनेक्शंस होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं जो हम शेयर करते हैं। Okay, so that is what life is, and always remember one thing: don't be overconfident, underconfident. Dust you are, okay, and the you shall return to dust only. Okay, हम लोग we are dust. Okay, ये अर्थ की एक डस्ट से बने, डस्ट में ही मिल रहा है। तो जितना आप अच्छा कर लो, मजे कर लो, एडवेंचर कर लो, सीख लो, एक्सप्लोर कर लो, इतनी लाइफ है और खत्म हो जाएगी, और सबकी खत्म हुई है, और बड़े बड़े लोग आए हैं और चले गए हैं चुपचाप। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, फ्री योरसेल्फ, एंजॉय लाइफ, एंड ट्राई टू बी वन थिंग दैट यू शुड बी नोन फॉर। ओके, कुछ बड़ा सा नाम हो, बहुत अच्छा नहीं लगता है कि जैसे मान के चलो कि कुछ नाम आया ब्यूरोक्रेसी का, तो उसमें संदीप राजौरिया नाम पहले आ रहा है सबको, I would be very good, I would feel good. This is what I'm telling. Choose that one field, dedicate your life for it. Okay. यही मुझे कहना था. Thank you so much, teachers, respected teachers, my batchmates, my roommate सुन रहा होगा और बड़ा हंस रहा होगा. I know, क्योंकि एक बॉन्ड है हमारा. और the fellow juniors, तुम्हारे फ्यूचर्स बहुत ब्राइट है, brightest of the bright. Okay. Just right energies, right time, right guidance, and you hit it. Okay, so please, I'm very hopeful for the future relations that we will have. Thank you so much everyone. That's it, we can have the interaction. Okay, Thank you so much, Sandeep. It was so beautiful, so inspiring to hear you. And I hope all our people, all specifically the juniors, your batchmates, I think seniors also maybe, they can all, we can all, get so much of inspiration from your talk today. Those small, simple events which have shaped your life. And I'm sure, we all know JUIT is such a wonderful, there is so much of positivity in the place. The aura built is so beautiful. And yes, the teachers and the connect the teachers build, the family relations which we have with our students here is really nowhere to be found. It's a beautiful environment, a beautiful, place which shapes the personality of not only the students, but teachers also to a great extent. It's a give and take thing. We learn from you, you learn from us, and it's so wonderful. It was so lovely to hear from you, specifically those simple small incidents. And yes, the clouds and the sunsets, so much important for JUIT. I know you didn't mention the orange shed. That happens to be the Mughal Gardens, which happens to be the most important part. Our lay festus, the entire events are, and Amit sir is the JYC head. So he's planning so many events. He's always on the run for all the events. So thank you so much, Sandeep. So wonderful to hear. And yes, I open the session. You all are free to ask questions from Sandeep. Sandeep, there is a question for you. Someone has asked you to give a Ramban to how to study history. So, Dr. Tanu, just may I come in for a moment? Yes, ma'am. Because I'm seeing a very smiling face, Sandeep, and that he started his session also that he always had a smile on a face. And I don't exactly recollect whether I've taught you in the batch or not, but your face is familiar. I'm Dr. Anupriya speaking, just in case is for you to recollect. So let me tell you, your interaction was great. It was absolutely inspiring. Dr. Tanu has already mentioned. And also how you've spoken about my fellow colleagues, that is absolutely inspiring, because Dr. Amish from my own department, Dr. Bajaj, who's also a close colleague, and you remembered all those little incidents. So that's why I came in between just to thank you. It's so heartening to see you validate those small instances of teachers, how they can be inspiring, and it motivates us. So thank you very much. And I'm so happy to see your journey and how you spoke about your journey and how you came out from those lows. Surely, not only you, please pass on my message in regards to your parents, because I think some of this comes from the parents too. And as much as you have gone through a distress in those times, I'm sure your parents also had a tough time and they had to keep a happy face for you, like all parents do. So please pass my regards to you. And I don't know whether you're single or married, so best wishes for that also.
Okay, take care then. And I think now your juniors would like to ask you a lot of things. Thank you so much, ma'am. I'll also just say one line. Congratulations. That's obvious, Sandeep. And it's a really a great day for a teacher when a teacher is learning from the student. So I'm sure that we all have learned a lot of means from your experiences, from your thought. At least I have learned a lot, and I'm very happy for you and good wishes. And please take up the questions and take your juniors' queries also. Thank you so much, sir. And we'll be in touch. We'll be in touch always. Sure, sir. Yeah. Okay, Sandeep. Yes, Sandeep. So Ramban for history. History. See, रामबाण is one thing. राम का जो बाण होता है वो एक काफी होता है and it does everything. Okay. So एक चीज जो हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है वो है इंटरेस्ट. ओके. सो जब आपको इंटरेस्ट होता है ना तब आप बुक की लेंथ नहीं देखते हो कि वो कितनी है या फिर उसमें क्या है. ओके. सो इंटरेस्ट जो होता है, अगर किसी को बहुत जेन्युइन इंटरेस्ट है, जैसे मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट है, एक जेन्युइन इंटरेस्ट अगर जैसे सर को इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो आपको ऐसा एक इसमें अगर बहुत इंटरेस्ट है, अब जैसे इंटरेस्ट कैसे आएगा उसके लिए आप पहले से कर लो. जैसे कि जब मैं हिस्ट्री में क्यों पढ़ रहा हूँ, आप ये सोचो ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हो, कैसे आप इतने बड़े यहाँ इस ओहदे तक इस चीज तक पहुंचे हो, कैसे मेरे पूर्वजों ने क्या किया था, मेरे रीजन में क्या हुआ था, या फिर मैं आज किसी टेम्पल में विजिट किया तो यार उसकी हिस्ट्री क्या है, ये इतना पुराना. मैं लिंगराज टेम्पल गया था, वो 12th सेंचुरी एडी में बना था. इतना पुराना टेम्पल कैसे बनाया किसी ने, क्या टेक्नोलॉजीज थी. This questions and inquisitive mind is the one that will drive you. And history is nothing in front of this. You will like history रट जाएगी आपको. जैसे मुझे पृथ्वीराज चौहान की कहानी बड़ी पसंद है, मुझे पूरी रटी हुई है. क्यों? मैंने कोर्स के लिए थोड़ी पढ़ी, यूपीएससी में पूछा ही नहीं जाता उसके बारे में. But I wanted to listen to it. Interest. Okay. Sandeep, another question. It is asked, how did you choose your optional subjects and why geography? Okay, well, ज्योग्राफी मैंने इसीलिए चूज किया क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ ज्योग्राफी को. आगे भी मैंने सोचा है कि मैं कैरियर में कुछ ना कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड करूंगा. और वो क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि मैं पहाड़ों में रहा हूँ. ओके. सो मेरी काफी इंक्विजिटिवनेस तभी थी जब मैं कॉलेज में था कि यार ये पहाड़ एकदम से कैसे बन गए, चंडीगढ़ से आते हुए एकदम से कैसे इतने पहाड़, हाई राइजिंग पहाड़ हो गए. और ये जो विलेजेस हैं यहाँ पर, ये ऐसे अलूफ है, इनके जो बिहेवियर्स हैं वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द प्लेन एरिया जो चंबल एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ. ये ऐसा क्यों है? तो स्पेस और रीजन, उससे मुझे बड़ा वो था कि वेरिएशन कैसे होता है, इसीलिए मैं ज्योग्राफी चुना. दूसरा ये भी था रीजन कि ज्योग्राफी में मैप्स और डायग्राम्स बहुत होते हैं. तो मैं बचपन से काफी अच्छा हूँ मैप्स डायग्राम बनाने के लिए, और मेरा बहुत इंटरलिंकेज माइंड रहा है, तो मेरे को रटा नहीं जाता है. अब हिस्ट्री में थोड़ी सी चीजें होती है जो आपको मगअप करनी होती है. ज्योग्राफी इज मोर इंटरलिंकेज, so that's why. Okay, a little insight into current affairs also, Sandeep. How did you study your current affairs? Is it supposed to be done on daily basis, and anything you could recommend on that? Roadmap for current affairs actually. Okay. Current affairs, see, daily newspaper पढ़ो. इंडियन एक्सप्रेस आता है, सबसे बेस्ट इंडियन एक्सप्रेस है, आप उसे पढ़ो. और दूसरा करंट अफेयर्स के लिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स होती है, और प्रीलिम्स से पहले पीटी 365 आती है और मेन से पहले मेंस 365 आती है. उन 2-3 जो मैगजीन्स आती हैं उनको अच्छे से पढ़ लो, और रोज न्यूज़पेपर पढ़ो क्योंकि न्यूज़पेपर से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. एक ब्यूरोक्रेसी एक्सपेक्ट है कि न्यूज़पेपर उसे बहुत अच्छे से आता हो. ओके, रिक्वायरमेंट है इस जॉब की. और करंट अफेयर्स, अगर आपको रीजन के करंट अफेयर्स चाहिए ना, जैसे कि आप हिमाचल में रहते हो तो उनके लोकल न्यूज़पेपर्स और लोगों से इंटरेक्शंस वो जरूर करो. ओके, जैसे कि मुझे अब कॉलेज की करंट अफेयर्स पता चले हैं जब मैंने आपसे इंटरेक्ट किया. ओके, इन दिस वे. Okay, so another question, was the selection of subject in the UPSC easy? How did you, I think he wants to ask you, how did you select your subject? What was the criteria there?
And sir, please, the question states, sir, please share your few resources also with us, which would help us to, to learn a lot and to get guidance. So sorry, ma'am. What resources? I mean, I think they want to ask that which books typically you Acha, studied. books. Okay. Maybe, did you take a coaching from somewhere or something? Yeah. How? Okay. See, I will tell you frankly and very truthfully. See, first of all, the criteria to choose the selecting subject. See, you select only one subject, okay, and other all subjects you are compulsory, and every subject is there, including the technology. Okay, so you have to do the technology also. Yes. So what I took was, first of all, मैंने geography select किया था. क्यों? First interest, second previous year question and syllabus को देखा जो मुझे ऐसा लगा कि मैं कर सकता हूँ. Third, आंसर राइटिंग, क्योंकि मेंस में ही ऑप्शनल सब्जेक्ट का रोल होता है, प्रीलिम्स में नहीं होता. तो मैंने ये सोचा कि लिखना एट द एंड ऑफ द डे आंसर ही है. तो अगर मैं इस सब्जेक्ट का अच्छा आंसर लिख सकता हूँ, कोई भी आप सब्जेक्ट चुन रहे हो, ये जरूर देखो कि जो मेन है मेंस एग्जाम, आंसर लिख सकता हूँ या नहीं. ओके. जो दूसरा क्वेश्चन था अबाउट द रिसोर्सेज, मेरा एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, सारे सिलेक्टेड का एक होता है, स्ट्रेटेजी शेयर होती है. मैं वो टेलीग्राम लिंक शेयर कर देता हूँ, वरना आप संदीप राजौरिया ऑल इंडिया रैंक 290 के सब सर्च करना तो मिल जाएगा टेलीग्राम पे, उसे ज्वाइन कर लो. ओके, मैं लिंक भी भेज देता हूँ. ये वाले जो रिसोर्सेज होते हैं वो ऐसा है कि मैंने जो कोचिंग थी वो मैंने सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट की ली थी, ज्योग्राफी की, और सारे जीएस मैंने खुद पढ़े. ओके, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था. कॉलेज के लास्ट मंथ तक मेरा इकोनॉमिक्स और वो हो गया था आउट ऑफ द ह्यूज थिंग्स दैट वी यूज्ड टू डिस्कस एंड वी हैड इंटरेस्ट, तो वो खत्म हो गया था. इस तरीके से तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि जीएस की कोचिंग लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. ओके, ऑप्शनल की लेनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि ऑप्शनल आपका न्यू सब्जेक्ट है, आपने कभी उसको पढ़ा नहीं है. सो ये वाली चीज आई विल रिकमेंड. और रिसोर्सेज के लिए टेलीग्राम चैनल है. अभी मैं बुक लिस्ट ऐसे दूंगा तो इट विल बी लिटिल मींस नॉट राइट, यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर इट आल्सो. So did you go through NCERT books? Was NCERT Yes. Sandeep? Is there a question here? Well, I'm very happy a lot of people know about UPSC and all. See, NCERTs पढ़नी होती है. NCERTs are like planks. Okay, जैसे कि हम सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं, डायरेक्ट नहीं चढ़ना, एक प्लैंक है. So NCERT आपको बता देता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है. और NCERT एक टेक्निकल बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते हैं टॉपिक्स. एकदम से आपके सामने पार्लियामेंट नहीं आ जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा पार्लियामेंट क्या होता है. तो वो धीरे धीरे चढ़ता है कि कैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, कैसे इवोल्यूशन हुआ है. इसीलिए जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, फर्स्ट 3 months NCERTs, मेक नोट्स आउट ऑफ इट. आफ्टर दैट रेफरेंस बुक्स जो हर इंटरनेट में अवेलेबल है, एंड आफ्टर द रेफरेंस बुक्स आर ओवर, द प्रैक्टिस. दैट्स इट. So Sandeep, lots of congratulations coming your way, lots of good wishes coming your way, right? There is a certain question for you, that is, in your entire journey, did you experience something which you would, given another chance, you would like to undo it, something you would, an experience which you went through, something you faced, it says something you would like to change, something you just did not do, but now if given a chance, you would like to do now? Anything like that? Let me think. It's a big, like it's a IAS interview question actually. This is the kind of question it is asked. Gurleen has asked this question. If you want to change, do it over, what would it be? Well, see, I have a lot of embarrassing moments and a lot of failures which I would like to change. पर मैं चेंज करना नहीं चाहता हूँ. पता है क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि फिर मैं वो नहीं रहूंगा जो मैं अभी हूँ. देखो, एक भी दिन है ना लाइफ में, सब शेप कर रही है आपकी पर्सनैलिटी. अगर मैं उस एक टाइम को मान के चलो 2014 और 15 चेंज कर देता हूँ ना, तो मैं ये सेम पर्सन नहीं रहूंगा, शायद कुछ और बन जाऊंगा. तो ऐसा है. और इतनी फेलियर्स मैंने देखी है, तो मैं तो दोस्ती ही हो गई है फेलियर से. तो मुझे वो तो मेरे फ्रेंड्स ही एक तरीके से, तो मैं ऐसा कुछ चेंज नहीं. बट मैं चाहूंगा कि कुछ पास्ट अपनी कंट्री के इंसिडेंट्स हैं वो चेंज हो जाए, जैसे कुछ कॉमनल राइट्स हैं या फिर कुछ ऐसी जो चीजें हैं जो हम अंडू नहीं कर सकते. तो
एक टाइम ऐसा हो शायद मैं पास्ट में जाऊं और मैं हूँ वहां पर, तो शायद मैं या फिर कोई और भी ऑफिसर हो जो उस चीज को हैंडल कर ले, जैसे कम्युनल राइट्स हुए, कितने लोग मर गए, रेप्स हैव हैपेंड. So these are certain distressing things which I'd like to undo, not on personal life. That was such a beautiful answer, Sandeep. I would like to tell you that in one of my GD classes, I take this session that if there was a time machine and you want to go back or you want to go in the future, what would you like to do? So you answered it so well. Yes, communal rights, rape, so many incidents which we Yes. can, if given a chance, if we can undo, then why not? That was, Yes. I think that is what makes you unique. I think that kind of thought line has to be there when we are more sensitive and more sensible towards others rather than being selfish. Okay, there is another question for you, and I think this is a very important question. If you do not have friends support, if you do not have your parents support, if you do not have any financial support, and no one is supporting you in this journey, then what do you do? How do you move forward? This is a question from a 2019 batch student. See, ऐसे टाइम्स आते हैं लाइफ में जब कोई सपोर्ट नहीं करता है, बट जो तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स और फैमिली होती है वो लगभग हर केस में तो करती है 90%, बट 10% की बात कर लेते हैं. एज यू हैव सेड, सी यू हैव टू बी क्लियर what you are doing and why you are doing, and that's it. Even if the universe is against that aspect, now you got to do it. This is the commitment that is required. Okay, there will be obstacles. Ab main frankly speaking, I will say this, in Chambal areas a lot of things are there, like gender discrimination, and a lot of problems happen. Dacoity happens because of this only. I as a person, I never support this, and I fight against my society and family also, and they don't support me in that. But got to do this. How can you have this kind of, you have to be such influence you should have that you do it nevertheless, anything comes up. Okay, but one more thing I will say, see, be clear about what you have to do, and it is non-negotiable in nature. Don't think about it who supports, directly go for it. And here one more thing I will say, don't seek support from others, start supporting others, and then you will start getting it back in some random ways. See, friendship and relations are very different than what we do job. And a job, like you do the hard work and get the money, there is a contract, but it doesn't happen in relationship are deep, intrinsic. You gotta give more. Okay, so start support your mother in your daily household the work that she does. She will start supporting you. This is how it works. Sandeep, I'm going to take the last question for the session. I think it's going to go too long. Lots of questions coming, but yes, an important question which I would also like to ask myself: how has this journey changed you? What specific changes have come in you, and how do you see yourself today? Changes, ma'am. First, overall, truly. जो मैंने देखा था, मैं थोड़ा सा एरोगेंट और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था पहले अपनी लाइफ में. अब आई एम हम्बल. आई नो द रियलिटी दैट देयर इज नथिंग टू फ्लाई. सेकंड चीज जो मैंने सीखी है वो ये है कि यू डोंट हैव टू बी अटैच्ड किसी भी चीज से. अटैचमेंट मतलब एक बहुत ही एक डिस्टेंस में रहना इंपॉर्टेंट. अगर यूपीएससी है जैसे, अगर नहीं होता है तो मूव ऑन, गो आउट फॉर समथिंग एल्स. सो अब जैसे यूपीएससी नहीं हो रहा है पर मेरा ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना, एनजीओ ज्वाइन कर सकता हूँ, सोशल साइंसेस की स्कूल्स में जाके कुछ रिसर्च कर सकता हूँ, एनीथिंग आई कैन डू. सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ मी टू वाइडर पर्सपेक्टिव एंड नॉट अ नैरो थिंकिंग, एंड नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ, गोइंग आउट ऑफ यू. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने एक चीज सीखी है, और मैंने एक और चीज सीखी है, वो ये है कि the person who is true to his heart and honestly with a clear motive without hampering anyone, जो सबका अच्छा करते जाता है selflessly, the nature protects him. So अब मुझे बिलीव हो गया कि मैं स्लम चिल्ड्रंस को बहुत कैरियर काउंसलिंग करता था पिछले 3 सालों में. अब मैं भी डिप्रेसिव फेज से, जैसे आकांक्षा वाज सेइंग,
ऐसे ही निकला हूँ। मैंने स्लम बच्चों को पढ़ाया और मैंने देखा कि मेरी कुछ कैरियर एडवाइसेस किसी का कैरियर बना रही है, किसी को क्राइम से रोक रही है, तो उससे जो एस्पेक्ट आता है वो बहुत ही मतलब डिफरेंट होता है, एक नई एनर्जी होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो दिस इज थिंग दैट आई हैव लर्नड। Take lesson. Okay, Sandeep, just a last question. Lot of questions coming in, lots of people raising their hands. Kunal, you want to ask something? Please go ahead. Yes, ma'am. Am I audible? Yes, yes. Yes. सर आजकल सर प्रीलिम्स काफ़ी ट्रिकी हो गया है सर। जैसे आपने 2021 प्रीलिम्स देखा होगा सर, 4 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आ गए हैं, साइंस एंड टेक से भी काफ़ी अनयूजुअल क्वेश्चंस थे, और हिस्ट्री से भी सर काफ़ी हाई लेवल के, मतलब जो रूटीन बुक्स में हमें नहीं मिलता वो था। तो सर हमें प्रीलिम्स के लिए क्या अप्रोच रखनी चाहिए? देखो एक्चुअल में क्या है कि प्रीलिम्स सबसे पहले तो प्रीलिम्स डाइसी पहले भी था, पर अब बहुत ज्यादा डाइसी है। और आज के टाइम में तो हम जैसे हमारे 96 एफसी के जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, हम भी यही बात कर रहे थे कि ये बहुत लक हो गया है प्रीलिम्स निकालना। 1-2 नंबर किसी टॉपर्स का 1-2 नंबर से निकला होता है, और सोचो एक क्वेश्चन गलत करके आ गए होते तो लिस्ट में ही नहीं होते, अभी पता नहीं क्या कर रहे होते। तो लक इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। वेल, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। मैंने 5 प्रीलिम्स दिए, 4 निकाले हैं। जब भी मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई की वो निकले हैं, तो मैं बता देता हूँ क्या है। देखो सबसे पहले कि as soon as you start your preparation, start focusing on the mains first. उसके बाद जब प्रीलिम्स 4 महीने दूर होगा तब प्रीलिम्स करना है। ओके, 4 महीने डेडिकेटेडली प्रीलिम्स करना है, ठीक है। अभी 4 महीने आपको 1 साल के अंदर पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, उसके नोट्स बना लेने, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को ध्यान में हमेशा रखना है। देखो हर एग्जाम में, चाहे तुम IIT से लेकर कोई भी एग्जाम ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यूपीएससी खुद चाहता है कि बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें और समझें कि कैसे क्वेश्चन हम पूछते हैं, उस हिसाब से प्रिपेयर करो। कभी कभार तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो प्रीलिम्स एट द एंड ऑफ द डे आप 100% क्वालिफाई कर लो, तो कैसे प्रीवियस ईयर को रट लो। तो लास्ट 20 इयर्स एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो रिपीट हो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 20 क्वेश्चन सेम लाइंस में जाएंगे, सेम लाइन में। आपको ऐसा लगेगा हाँ यार ये सुना हुआ है। ओके, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के हमेशा देखो ऑल ऑफ द अबव मैक्सिमम उसमें आता है। These are some techniques and strategy. Start doing this. Okay. दूसरी चीज है प्रैक्टिस। हम क्या करते हैं ना, सब पढ़ बहुत रहे हैं, सबके सब पढ़ रहे हैं रूम में बैठ के, प्रैक्टिस बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो अगर जैसे आपका प्रिपरेशन 1 साल पूरा हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। विजन IAS के टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट, उन सबको उसको मत सब्सक्राइब मत करो, वो महंगे होते हैं। कहीं किसी कोचिंग सेंटर में कोई फोटो स्टेट शॉप में जाओ दिल्ली में, वहां आपको सारे मिल जाएंगे। सबको उठा लो, 20-30 टेस्ट को उठा के ले आओ अपने घर पे और सॉल्व करना चालू कर दो। 50 क्वेश्चंस पर डे फॉर 4 मंथ्स। तुम्हारा प्री कोई रोक ही नहीं सकता है अगर तुमने ये कर लिया तो। देखो मेहनत लगती है, ये एग्जाम इंटेलिजेंस का नहीं है, लेबोरियस और लाइक पेशेंस का एग्जाम। हर दिन 50 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट और फिर सॉल्व, और वो गलतियां उसको लिख लो क्या गलतियां हुई, फिर नेक्स्ट डे रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा देन यू विल बी मास्टर ऑफ प्रीलिम्स। आई हैव सीन माय फ्रेंड्स स्कोरिंग 30 अबव कट ऑफ। सोचो इतना डाइसी गेम में भी 30 ऊपर है, मतलब उनने बहुत सही प्रिपरेशन की हुई है। सो आई वुड रिकमेंड दिस। ओके, एंड मैं एक काम करता हूँ, मैं टेलीग्राम आईडी पोस्ट कर दूंगा, उसको आप लोग सब ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको आगे के लिए भी। ओके, वेल अभी कोई क्वेश्चंस पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, क्योंकि बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस है। Raising his hand. Pavas, you have a question? Pavas? Not here. Arushi? Yes, ma'am. Congratulations, sir. First of all, sir, मुझे ये पूछना था सर, जैसे अभी तो हम लोग घर पे हैं, तो सर प्रिपरेशन करना तो आसान है क्योंकि अभी कॉलेज में नहीं है सर, क्योंकि अभी घर पे होता है कि अपना कॉलेज का भी पढ़ लो और साथ में प्रिपरेशन भी हो जाती है। पर सर जब हम कॉलेज आएंगे तो प्रिपरेशन कैसे, क्योंकि कॉलेज में होगा, फ्रेंड्स भी होंगे, थोड़ा घूमना फिरना भी होगा, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे कॉलेज में जाके, मतलब ये। यार हमारा कॉलेज तो अपॉर्चुनिटी दे रहा है हम लोगों को पढ़ने के लिए। मैं जब सेकंड ईयर में था, मैं वो 3rd फ्लोर नहीं है लाइब्रेरी का -3 पे, वहां जाकर मैं PhD की बुक्स पढ़ता था। पता है वो तो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है वहां पर पढ़ने का। सी कॉलेज और प्रिपरेशन को मैनेज ऐसे कर सकते हो विद बेटर टाइम मैनेजमेंट। ओके,
सो पहले से वीक का स्केड्यूल निकाल लो कि कौन सी टीचर कब क्लासेस ले रही है, और 9 से 5 आप एकेडमिक्स में ही रहो। अब 9 से 5 हमेशा तो क्लासेस चलती नहीं है, कुछ कुछ फ्री रहता है, वो 1-2 घंटा सबसे ज्यादा वेस्ट होता है। उस टाइम पे लाइब्रेरी आ जाओ और 5 बजे के बाद ही रूम जाओ और कम से कम 3 घंटे रोज पढ़ाई करो, ठीक है, कॉलेज में। क्योंकि मैं जानता हूँ थोड़ा सा सब प्रॉब्लम तो रहती है, ऑफ कोर्स कैसे मैनेज होगा, बट 3-4 घंटे का स्केड्यूल बना लो, एक हफ्ते का, एक संडे को बैठ के अच्छे से स्केड्यूल बना लो, ये चीजें करनी है, और वो नीचे चले जाओ -3 पे, यू कैन डू इट। मैं तो वहाँ बहुत पढ़ाई की है, बहुत अच्छा एटमोसफेयर रहता है, पहाड़ भी दिख रहे होते हैं एंड बढ़िया पढ़ाई भी चलती है ना। ये पहाड़ी काम खराब करते हैं आई थिंक। सर एक और क्वेश्चन था सर, जैसे आप प्रिपेयर करते हो सर कि आपको कहते हैं पेरेंट्स पे आपका वो होता है कि फोकस होता है कि नहीं आप पहली बार दे रहे हो तो मतलब सबसे होता है कि नहीं आप निकाल पाओगे, तो सम टाइम मतलब पेरेंट्स को कैसे करना कि नहीं भी हो पाता है, कि मतलब फेलियर आ जाता है लाइफ में, तो उसको मीन्स मतलब फोकस हो जाता है कि आप इसमें रहते हैं ना कि मतलब। देखो फोकस सिर्फ मोटिवेशनल बुक से नहीं आएगा, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से आता है। जब आप अपने जैसे मैं आपको अपना बताऊं तो 5 साल में मेरी मम्मी पापा बोलते हैं कि अच्छा हुआ इसने प्रिपरेशन कर ली, मैं काफी बदल गया हूँ, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है मेरा ये जो पर्सनैलिटी एक डेवलप हो गई है कि यार ये बड़ा अच्छे से सब कुछ काम हैंडल कर लेता है, रिस्पॉन्सिबल बन गया। तो देखो पेरेंट्स और जितने भी एक्सटर्नल पीपल हैं, सी टीचर्स हैं, इन सबको एविडेंस चाहिए कि तुम पढ़ रहे हो, ओके। यस सर। कैरेक्टर में इंप्रूवमेंट पहला, दूसरा आपके उसमें, जैसे आज मेरा प्री नहीं निकला पर नेक्स्ट टाइम मेंस में रह गया, तो मतलब प्री तो निकला था नेक्स्ट टाइम, मतलब उसने बच्चे ने मेहनत की, ओके। फिर मेंस निकला पर इंटरव्यू फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, तो फिर पेरेंट्स खुश होते हैं कि चलो बच्चा मेंस निकाला मतलब मेहनत की। फिर धीरे धीरे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से एक टाइम आता है जब आप रैंक ले लेते हो, है ना, ऑफिसर बन जाते हो। सो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट is the best motivation for you and best evidence for parents. Always remember, see parents and machine नहीं है कि मतलब पेरेंट्स भी यार इंसान है, कैसे उनको तो डर लगेगा बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, वहां पर क्या कर रहा है, कोई गलत आदतों में तो नहीं फंस गया। उनको एविडेंस शो करो कि पापा देखो ये सारी चीजें हुई है, मैंने ये किया है, नंबर मैं 2 नंबर से रह गया था पिछले एग्जाम में, मैं आगे 2 नंबर बढ़ा लूंगा तो ऑफिसर बन जाऊंगा। आप सोच सकते, मैंने ऐसे ही कन्विंस किया पता पेरेंट्स को। तो evidences, okay, you are engineer, so data analysis, like evidences in terms like दिखाओ report card जाके, तो तब they will, okay. Yeah, thank you sir. Thank you, sir. Anushi, Abhay? Yes, ma'am. Yes, please go ahead. First of all, sir, congratulations, sir. Thank you. सर जैसे आपकी 5 ईयर जर्नी थी सर, तो सर आपको काफी स्ट्रेस हुआ होगा सर, आपको काफी प्रेशर हुआ होगा सर, आपने उसको कैसे हैंडल किया सर? देखो यार स्ट्रेस तो बहुत होता है, मैं पर्सनली आकांक्षा वाज सेइंग आई वाज एबल टू रिलेट इट, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ कि टेंशन कैसा होता है। टेंशन बहुत अलग टाइप का टेंशन होता है यूपीएससी में, इसीलिए आप देखोगे जो ऑफिसर बन रहे हैं ना यहाँ से बड़े स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होंगे, फिर इनको आप रोक नहीं सकते जब ये सिलेक्ट हो गए, क्योंकि इतनी फेलियर देखी होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, चीज ये होती है कि अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स निकल रहे होते हैं, आपके फ्रेंड्स बहुत आगे बढ़ रहे होते हैं, आप वहीं रहते हो, एकेडमिकली ग्रो नहीं करते हो, एक इंजीनियरिंग डिग्री है, जॉब कर नहीं सकते क्योंकि प्रिपरेशन नहीं होगी, पैसे आ नहीं रहे, वही 10-15 हज़ार के जो पापा मम्मी पॉकेट मनी भेजते हैं उसमें से आपको गुजारा करना है, छोटे से रूम में दिल्ली में रहना है, कोचिंग करनी है नहीं करनी 4 बार सोचना है बिकॉज ऑफ द मनी इश्यूज। और अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते तो माय गॉड टेंशन इज लाइक सुप्रीम, ओके। फिर आप ये देखो किसी ने लैंड अपना गिरवी रखा हुआ है यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, आप ये समझो कि ये जो टेंशन होते हैं ना बिल्ड हो रहे होते हैं धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे अटेम्प्ट्स के बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि यार मैं तो फेलियर ही हूँ, मेरे से तो नहीं निकलेगा, ऑफिसर बनने लायक ही नहीं हूँ मैं, ओके। तो वो धीरे धीरे बिल्ड होता है, समझ में नहीं आ रहा होता है वो, धीरे एक टाइम आएगा 1-2 साल में ब्रेक डाउन हो जाएगा, अरे यार दिस इज पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लो एनर्जी से। सो ये नेचर ऑफ टेंशन इसका डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम, ओके। सी आईआईटीज का टेंशन अलग होता है क्योंकि उन्हें पता है कोई तो कॉलेज मिल जाएगा, जॉब तो लग जाएगी, यहाँ तो आप बिल्कुल बेयर खेल रहे हो, आप नो होल्ड बैरियर जिसे बोलते हैं, ठीक है। सो इसीलिए मैं ये जो मैं करता था, मैं क्या करता था, मैं आपको अपनी टेक्निक्स बता देता हूँ बहुत सिंपली। देखो सबसे पहले लास्ट के 15 मिनट सोने से पहले मैं एक मोटिवेशन बुक पढ़ता था, ठीक है, और वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स भागवत गीता होती थी। भागवत गीता से मैंने बहुत सपोर्ट लिया भाई, अनअटैच्ड एंड व्हाट ऑब्जेक्ट सिचुएशन पीपल सब इक्वल है, सक्सेस फेलियर इंसल्ट ऑनर
डिप्रेशन, हैप्पीनेस, एवरीथिंग इज इक्वल, नथिंग इम्पैक्ट्स यू। एंड जो एक वो हो गया। देखो एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, भागवत गीता में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। तो डुअलिटी मतलब क्या होती है? स्टार्ट सीइंग कोई भी चीज की कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। अगर यूपीएससी आप दे रहे हो, अटैच मत हो जाओ क्योंकि उसके बड़े पॉजिटिव है, रिस्पेक्ट मिलती है एंड ऑल, उसके नेगेटिव्स भी देखो। पता है यूपीएससी के बाद मेरी पर्सनल लाइफ नहीं रह जाएगी कुछ भी। अभी मैं ब्यूरोक्रेट से बात कर रहा हूँ, दे आर सेइंग आपको 24/7 जॉब है, आपको छुट्टी भी नहीं मिलती है। अब सोचो जो अलग प्रोफेशन में तुम मजे करेंगे पर मैं नहीं कर पाऊंगा, नेगेटिव्स भी हैं उसके साथ। ओके, जब आप दोनों को देखते हो ना, पॉजिटिव को भी नेगेटिव को भी, तब बैलेंस हो जाता है इंसान। फिर वो अटैच भी नहीं हो सकता क्योंकि उसे पता है इस पॉजिटिव में नेगेटिव भी है, और वो हेट भी नहीं कर सकता क्यों? क्योंकि नेगेटिव में पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्रिटिकल एनालिसिस बोलते हैं इसको, मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट स्किल ये एक होती है। जब अगर उसने बोला कि फार्म लॉज है तो बताओ पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं। इसीलिए अब डुअलिटी में रहो। डिप्रेशन आया ना, डिप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये भी बोलता हूँ कभी कभार द ट्रेजर्स यू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन इज बिट हायर, लाइक एक लेसन मिल जाएगा इतना खतरनाक कि आप सुप्रीम उस लेवल पे पहुंच जाओगे, टॉप पोजीशन पे, है ना? तो इसीलिए डोंट। और एक चीज थी फिजिकल फिटनेस, मैंने एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़ी। मैं रोज फिजिकल एक्सरसाइज कर दौड़ता था, और फिर बहुत फ्रेंड्स के साथ मेरे कनेक्शंस कभी टूटे नहीं। दौड़ो, कोई स्पोर्ट ले लो, कैलीग्राफी करो, जैसे मेरी हॉबी थी कैलीग्राफी, में कैलीग्राफी करता था, बहुत मोटिवेशन मिलता था उससे। तो इन्वॉल्व योरसेल्फ इन क्रिएटिव एक्टिविटीज एंड समथिंग अदर देन यूपीएससी आल्सो। ठीक है? ऐसा Another question, Sandeep here, that how many times did you do revision of the standard books and also the NCRTs, and also give some tips now how to revise and remember the whole syllabus? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। सी, मैंने रिवीजन जो है ना वो किस तरीके से किया है कि सबसे पहले तो डोंट काउंट द रिवीजन, यू विल बी डिप्रेस्ड। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अमित सर, thank you so much sir, I will talk to you, I will call you after. just one thing I would like to add for everyone कि आप लाइफ में अगर सक्सेस होना, दिस इज फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग मी, तो आपके पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। All those who are watching Sandeep, if you recall इसका संदीप का आपने पूरा टॉक देखा, he is full of positivity. You cannot fake positivity in front of any interview panel or in front of anyone else. आपके अंदर अगर पॉजिटिविटी रहेगी तो आप सब कुछ मैनेज कर लेंगे। So with this talk, thank you Sandeep. I have another class, actually the class students are waiting, so I'm signing off. Thank you all. Thank you so much sir. Thank you, Amit. देखो लाइक रिवीजन है, तो रिवीजन को काउंट मत करो क्योंकि बहुत बार करना पड़ेगा आपको। एग्जाम ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड अटेम्प्ट में हो आप, तो आप अगर बोलोगे रिवाइज, थर्ड अटेम्प्ट में आते आते कम से कम आपने 40-50 टाइम्स रिवाइज कर ली होगी कोई किताब, क्योंकि आपको मॉक भी देने होते हैं और सब रिवीजन हो रहा है। डोंट काउंट, बिल्कुल काउंट मत करो। बस अपना लक्ष्य ध्यान में रखो कि यार मेरे को प्री निकालना है, ये मेंस निकालना है, इतना पढ़ना है बस। ठीक है। सेकंड चीज होती है रिवीजन की कि जब भी आप रिवाइज कर रहे हो कोई नई चीज, +1 कर दो कुछ। ठीक है, जैसे कि आज पृथ्वीराज चौहान के बारे में 2 महीने पहले पढ़ा था, आज पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ लो, जो पढ़ा था पहले उसको रिवाइज करने के बाद +1 कोई ऐसा फैक्ट अबाउट पृथ्वीराज चौहान जो न्यू एडिशन हो जाए, इससे ग्रोथ हो जाएगी नॉलेज की। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रेटेजी। सेकेंड इज रिवीजन जो होता है वो कभी लमसम नहीं करना चाहिए। तो रात में जब आप सो रहे हो, सोने से पहले 45 मिनट्स जो आपने दिन में पढ़ा है या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपका बड़ा टफ है उसको रिवाइज करके सो। मैं हमेशा रात की बात क्यों कर रहा हूँ पता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड है ना, इट रिवर्बरेट्स दोस थिंग्स। अब जैसे अगर मैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में रात में आपसे बात करूंगा, सो जाऊंगा, तो मेरा दिमाग पृथ्वीराज चौहान के बारे में सोचेगा, ओके, पूरी रात। तो ये बहुत बड़ा साइंस है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो किताब है उसमें ये लिखा है। तो सुबह जब मैं उठूंगा सबसे पहला थॉट क्या आएगा, पृथ्वीराज चौहान। दैट्स व्हाई रात को थोड़ा पॉजिटिव बनाओ और सुबह को भी ऑफ कोर्स। सो ये वाली चीज मैं रिवीजन के टर्म्स में देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी चीजें करो। बड़ी चीजों पे जंप करोगे डिप्रेस हो जाओगे, क्योंकि वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। छोटी छोटी चीजें, लिटिल लिटिल, जैसे एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, छोटा छोटा 2 हजार रुपए महीना, और फिर वो एकदम मिलता है। पेंशन कैसे चलती है, इन सब से सीखो, छोटा छोटा डेली। बस एक दिन आएगा
you will get through. Okay, the revision proper हो जाए. Sandeep, thank you so much. I think we can go on and on with this session. The questions won't stop, but I think every good thing comes to an end. But may the journey you've stepped, may you get all the laurels. May God's blessings be always with you, and may you really grow. May you really do something good for the nation. I think that is why you are into the services. And please share your Telegram link. Everyone is asking. Thanks, Sandeep. Now, a little vote of thanks from our president and the secretary of the JUIT alumni cell. Over to you, girls. Thank you so much, ma'am. Yeah, thank you so much. Yeah. Now, as the president of the alumni cell, I would like to take this opportunity to propose a vote of thanks on behalf of the alumni cell JUIT. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this occasion. At the outset, we would like to thank our alumnus, Mr. Sandeep Prajoria, sir, for his gracious presence and impactful deliverance, speckled with useful words of rich experience and wisdom. We are really enlightened with your knowledge and presence, sir. We would also like to extend our heartfelt gratitude to our advisor, Professor Dr. Vinod Kumar, sir, our respected Vice Chancellor, Professor Dr. Rajendra Kumar Sharma, sir, and the heads of various departments and the faculty for accepting our invitation and gracing us with their honorable presence. Over to you, Achyut. Ananya, if anyone needs Bhagavad Gita, I can give it to them. Sure, If sir. you go chahiye, it's free, and come to my cabin. I will hand over to you in the honor of Sandeep. Thank you so much, sir. संदीप, तुम्हारे टॉक सुनते सुनते मैं 2-3 बार मेरे आंखों में खुशी के आंसू, कम से कम 3-4 बार खुशी के आंसू छलके हैं. Sir, all I have learned from you. Thank you so much. God bless you. As a secretary of Alumni Cell, I would like to thank all the heads of department and the faculty members for their valuable presence and encouragement. Thank you, Dean of Academics and Research, Dr. Professor Ashok Kumar Gupta, for accepting the invitation. I would like to thank Dr. Saurabh Bansal, faculty in charge, Alumni Cell, and other faculty associated with the cell for the support and motivation. A special thanks to the organizing committee and the secondaries for helping us, for supporting us, for the outreach. Our heartfelt thanks to all the attendees, the participation, and my special thanks to Sandeep sir when I got in touch with him and he responded very positively and he accepted my invitation. So my special thanks to Sandeep sir for accepting the invitation and delivering this talk. Thank you everyone. Have a nice day. Thank you. Well, you can say that Telegram link is there on the message. You can join. Okay. This is the Telegram link. Everyone who wants to gain knowledge, they can join. And you can message me and write from JUIT. Okay, so I will reply you as fast as I can. Okay, so don't worry about it. And please, you all need to be selected now. Okay, UPSC जल्दी से clear करो. मैं चाहता हूँ कि मेरे भी juniors हों जो फिर जब मैं ऊपर जाऊँ मुझे भी support मिले क्योंकि मेरे juniors आएंगे फिर मेरे पीछे. Okay, so मैं जरूर चाहूँगा. है ना? Thank you so much, Sandeep. That was a beautiful session. I think we all enjoyed. It was so motivating and so inspiring. I think we all can learn so much from this session. And thank you so much for sharing your Telegram link. I hope all the students will take note of it. And I hope you will come to the campus one day and we can have a live session, a live talk with all of you. It would be such an inspiration for the entire JUIT family and for all our students present in the campus. Yes. Thank you so much, Sandeep, and all the best for your future endeavors. And Dr. Saurabh would also like to say something. Okay, congratulations, Sandeep, again. And really very nice talk. And it's a really very motivational and inspiration to our student as well, right? And also your juniors, right? And I also at this time I also congratulate my organizing team who organized this event very well, and very timely. So congratulations to that organizing team. Thank you, and I hope the people like it. And thank you. Thank you so much, Sandeep. Thank you, guys. Thank you. Please, you can all exit the meeting. Thank you so much.